during my 18 years of training in different fields, मेजरली तो IT, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स से ताल्लुक तकरीबन कोई 18 साल से, एंड आई लॉन्च डिफरेंट national and international brands in Pakistan. Most of them are running successfully. Some are in the process to actually reach their next level. So please, can I ask you that what is your expectation from today's workshop? What one thing that you want to learn from today, you want to know? Obviously I will cover everything which I have promised. I will cover every single thing, but it's not like that. If you will just share your expectation. Huh? Low budget. Okay. I'm already a strategist. I know the campaigning and stuff. The main focus is on low budget campaigning. And what do you mean by low budget? Low budget as in per order cost should be less. No, but there must be a criteria, because low budget must be different for this person and different for you. I might be happy with 100 rupees per lead, but he might not be happy in 50 rupees as well. So 100 to 150 rupees per order will be Per order, Yeah. order clothing of business, obviously. clothing business. Okay, okay. I would like to have the track of my campaign or have more successful campaign. Okay, okay. And which particular industry you belong? Huh? Services, education and services. Okay, that's wonderful. And you can also market your product and services. Other people will. I know the trick. Why not? Okay. Can you please share up? Is it a new thing for you? Facebook आपके लिए नया है बिल्कुल? मार्केटिंग नहीं की, लेकिन वैसे आप फेसबुक यूज करते हैं. ओके. Facebook pixels only. Okay. So then during the rest of, because we will be covering pixels in second half. Okay. जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपकी ग्रोथ लगती है तो आपके बने को बहुत सारी गर्ल्स में जो ज़्यादा मतलब फेस कर रही थी, अगर वो रिलेटिवली पॉजिटिव हो गई और बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो वो अपने पॉजिटिव नहीं आ सामने से आ रही है ये जा रही है उससे जो सब जॉब लेना तो बहुत कर रहे हैं. okay, please. More clients, yes. Every business goal is to bring more clients, to get more clients, to get more paying customers, to increase business, and this is exactly this workshop is organized for. Please. Proper audience. Okay. Okay. I'm basically new to Facebook. Okay. We use in office. Office equipments. Okay. Painting related problems. Okay. We find it hard to reach the right people. So my main focus is to increase the reach of my products and to target to the right audience. Okay. Thank you. Thank you for sharing. पूरा आप सीखना चाह रहे हैं कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है. ओके. कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको बॉदर कर रही है? आप अपने कैंपेन जब रन करते हैं तो कोई ना कोई चैलेंजेस आते होंगे जिसकी वजह से आप वर्कशॉप के लिए आए. अच्छा, कोई और चलाते हैं और आप, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए ताकि आप उनको मजीद गाइड कर सकें या एटलीस्ट अपनी कोई ओपिनियन दे सकें. ओके. ओके. कौन सा प्रोडक्ट है आपका? ओके. 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 यस. Short and simple, making nothing. So I'm from international sales. Okay. Okay. Wonderful. Yes. Yes.
Okay. And teachers and parents our own campaign. Okay. Okay. Just face for me. Okay. So have you ever run your campaign? Because I made that campaign for BBC. No, I'm talking about Facebook only. No, I never used Facebook since like 2012. Okay. Or I just started using it for Okay, no problem. Market your product, right? Your product and services. Okay. Okay. Walaikum assalam. complete Facebook marketing. I don't know about the digital marketing. Okay, no problem. First of all, I want to get Facebook marketing. Secondly, the mental marketing so that everyone acts हाँ, feature in the एटलीस्ट जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है ना, उनके नजदीक तो एंड पे ही है. मेरी तो एंड हो गई है. कैंपेन रन करने का मौका मिला कि उसमें सर जब मैं एक साथ बैठा और जब डिस्कस हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही मतलब उसमें जब मैंने यूनिवर्सिटी आया इसको देखा तो मुझे लगा कि यहाँ आके मुझे सब सीखने का मौका मिल जाएगा. आपने बिल्कुल सही सोचा. आपको यहाँ पे आके सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह. पता है आप कोई पहले मतलब कोई तजुर्बा रहा है कोई मार्केटिंग से, या फर्स्ट टाइम? एवरीथिंग इज फर्स्ट टाइम. ओके. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके. ये तो ज्यादा अच्छी बात है बिकॉज आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा ये तो. वेरी गुड सर. It's the era of artificial intelligence. AI is very important. So what I think that I have to go to the part of the team my targets in 2019. So I'm not much aware about it. And I'm not really say frequent user of Facebook. Okay, no problem. Learning that's with that. Yeah, So good learning. yeah, you will have great experience, inshallah. Okay. So, are you working for some business, or you have your own business to acquire a job, or okay? अच्छा, आपका कोई बिजनेस है? ऑनलाइन. ओके. कोई क्लोथिंग बिजनेस है या क्या? ओके. ओके, इंशाल्लाह. तो यू आर एंटरप्रेन्योर एक्चुअली. आप अब एंटरप्रेन्योर है ना, आप माशाल्लाह से चाह रही हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है लेकिन यू डोंट नो हाउ टू मार्केट एंड ब्रिंग मोर कस्टमर्स. ओके. I have I mean wonderful partners and very best friends. So उनसे भी हम कहते हुए भी आज आए हैं मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, तो मैंने कहा चलो उनसे भी पूछते हैं कुछ ना कुछ. हाँ हाँ हाँ. तो भाई समझ में ये नहीं आता कि फूड इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट. बिल्कुल. खाए और उसको बताए कि बहुत मजे की चीजें खाना. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो समहाउ जो टेन पॉपुलेशन है 70% जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन. हाँ बिल्कुल ऐसा. अपने माँ बाप और टीचर की जगह गूगल स्टार से हाँ बिल्कुल. ये समझना चाह रहे हैं कि गूगल स्टार क्यों ट्रेंड. हाँ माइंडसेट है. हाँ तो बहुत अच्छी चीज है वो उसको शायद पसंद ना करे. हाँ. और लेकिन ये है कि वो ट्रेंड फॉलोइंग ये कैसे शुरू हो जाती है, क्यों लोग इसको इतना प्रेफर कर रहे हैं, कैसे ये लोगों का अप्रोच कर रहे हैं. सिंपली हम देख रहे हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन ये है कि लोग तो सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग. हाँ इस चीज़ को समझने के लिए आते हैं. बहुत अच्छा. इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा. वैसा. Okay. Okay. Oh, as a marketing platform. Okay. Wonderful. Okay, that's wonderful. I'm going to start a young learners program. Okay. For this purpose, I
I need to explore the market. And you can also help your school you can also help your school to attract more parents. Okay. Okay, wonderful. Like promoting the players, or मतलब इस तरह के कुछ मसले हाँ हाँ, जो मतलब हमारे इसमें कम आते हैं। तो आपने पहले इसको सीखा है या आपने मतलब अपनी रिसर्च करके कर लिया उसको, अपने करके कर लिया? अच्छा, थैंक यू वेरी मच. आई एम सॉरी आई टुक दिस टाइम जस्ट टू अंडरस्टैंड द नीड, बिकॉज I want to talk what you need, okay? So you can get the best out of this workshop, okay? Now there are a couple of things which I would like to share with you before we proceed. The first thing is there is a mixed gathering, okay? There are few people who have already done Facebook marketing and they have specific questions, and there is an audience which have never done marketing, and few have some knowledge and some not. So आप सब लोगों के पास different questions होंगे और वो एकदम से bother करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं और डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, आप उसको लिख लें. उससे फायदा क्या होगा कि हो सकता है कि वो मेरा आपका जो क्वेश्चन है वो वैसे ही आंसर हो. होता क्या है कि जब हम इस तरह का वर्कशॉप रन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग शुरू के अंदर एक थोड़ा सा फेयर में होते हैं, यार मैं पूछ लूं कहीं ऐसा ना हो कि आज थोड़ा सा ही वक्त है और उसके अंदर मुझे अगर वो आंसर नहीं मिला तो मैं, और उससे होता क्या है कि वो जो फोकस होता है वर्कशॉप का वो टोटली डिफरेंट हो जाता है. कुछ ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी वो चीजें पता होते हैं तो वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया. अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ नहीं पूछेंगे. मैं बाकायदा आपको फुल अपॉर्चुनिटी दूंगा. आस्क एनीथिंग रिलेटेड विद फेसबुक, विद योर बिजनेस. आई विल शेयर माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोसेसेस, बिकॉज आप लोगों को जो सबसे ज्यादा चीज है ना अंडरस्टैंड करने की, वो है प्रोसेसेस, ठीक है? और इस वक्त जो भी लोग इस चीज की अवेयरनेस के साथ यहां पर आए कि नहीं, इंशाल्लाह ये इंटेंशन पहले सेट करें कि जिस इंटेंशन के साथ आप आए हैं कि हम यहां से ये पर्टिकुलर फायदा लेकर जाएंगे, वही इंटेंशन आपको एक्सपीरियंस ही होगा, ठीक है ना? जो भी आपसे, मेरी भी इंटेंशन ये है कि वॉट एवर टाइम, देखो आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि पैसों की भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है. तो आप अपने इस टाइम का इंशाल्लाह भरपूर फायदा उठाइएगा. मैं आपके साथ आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और आप लोग जो है वो सबसे पहले जो अब 1-1.5 घंटे के अंदर जो सबसे अच्छी चीज आप सीखेंगे, वो सीखेंगे कि हाउ यू कैन टर्न योर कंप्यूटर इनटू लीड जनरेटिंग मशीन, ठीक है? कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को एक दफा ऑटोमेट कर दें और उसके बाद वो आपके लिए कंसिस्टेंटली जो है वो कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर जो है वो जनरेट करे, ठीक है? तो होगा क्या इससे, जब आप खुद ही अगर सोलो प्रोनर हैं, आप अकेले हैं, वन मैन आर्मी है, आपके पास अपना प्रोडक्ट है और आप ही मार्केटर हैं, आप ही ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि वंस यू एक्चुअली अलोकेट योर मार्केटिंग कैंपेन टू अचीव अ सर्टेन गोल, ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई आपका होगा, उस कैंपेन के पीछे ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद वो आपके लिए जो है वो पोटेंशियल कस्टमर को जनरेट करते रहे और आप अपने ऑपरेशंस पे काम करते रहे, ठीक है? तो ये कैसा लगेगा आपको अगर ये आपको आ जाए अगले 1.5 से 2 घंटे में? ये अच्छा लगेगा कि आपके पास अगर कस्टमर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर. अच्छा, अब यहां पे ना 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी 2 तरह की चीजें हमने बेचनी है. एक तो प्रोडक्ट बेचना जो कि टेंजिबल है, जैसे कि वक्कास साहब ने कहा कि भाई ये टेंजिबल है, ठीक है? और कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन, सर्विसेज या दूसरी भी, ऑल द फूड इज ऑल्सो अ सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन उसके अंदर जाहिर है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो फूड एक टेंजिबल की सूरत में आप उसको देते हैं, वो उसके पैसे देता है आपको, और वो आजकल बहुत ज्यादा हिट है. अगर आप देखें तो जैसे ही कोई अच्छी तस्वीर आती है और उसमें से धुएं वगैरह उड़ रहे होते हैं तो दिल चाहता है, एक टेम्पटेशन सी होती है कि यार फौरन से जाके उसको खाया जाए. तो मैं इसके ऊपर भी काफी बात करूंगा इंशाल्लाह ताला. अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी.
Yes. Two of my colleagues just mentioned two terms. One is organic and the other fixed. So can you हाँ. find about these two? Of course we will talk about it. We will talk about it. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि देखें, सबसे पहले तो यही होगा, सबसे पहली चीज ये है ना, वो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी आपके लिए बिल्कुल नई चीजें होंगी, तो आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो एक्चुअली इनकॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियसनेस स्टेट में है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। ठीक है, तो जाहिर है कि इस लेवल पे जब आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपकी अवेयरनेस में आ जाएगी, और आपकी जब अवेयरनेस में आ जाएगी वो इंफॉर्मेशन, तो आप आ जाएंगे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के लेवल पे। मतलब आप कॉन्शियस होंगे, आपको पता होगा, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, और फिर थर्ड जो स्टेट है उसके अंदर डेफिनेटली आप जब उसको अप्लाई करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे और मजीद एक्सरसाइज करेंगे, और हमारा एक ग्रुप भी बना होगा, तो उसमें अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होंगे तो उन क्वेरीज को भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल बाद में आपको कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आती है या आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट, और हम बैठ के आपके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी, कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से बिल्ड करेंगे ऑन सोशल मीडिया और स्पेसिफिकली ऑन फेसबुक। ठीक है, और वाई फेसबुक। ठीक है, देखें ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी जो है वो फेसबुक के ऊपर उसके तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा और फिर मैं दूसरी चीजें बताऊंगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। फेसबुक के अंदर 3 स्टेप्स हैं और उसको मैं किस तरीके से देखता हूं उसके बारे में बताऊंगा। फेसबुक के अंदर जो 3 स्टेप्स हैं, या सिर्फ फेसबुक ही नहीं, आप जनरली भी अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं उसके भी 3 ही एक्चुअली स्टेप्स हैं। पहली चीज होती है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड की। अच्छा, अब आपकी जो अवेयरनेस क्रिएट होती है ब्रांड की, वो डेफिनेटली लोगों के दरमियान होगी ना। आप चाहते हैं कि जो लोग हैं उन लोगों के दरमियान आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया जाए और एक बहुत ही जबरदस्त इमेज उस ब्रांड का आपकी उस ऑडियंस के जहन में हो। तो उसके लिए आप डिफरेंट ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, और मैं भी करता रहा। मैं होर्डिंग्स भी लगाता था, मैं जो है वो पोल साइंस भी लगाता था, फ्लायर्स भी मैंने प्रिंट्स करवाए, 50-50 हजार फ्लायर्स। और हमारे पास यहाँ पे सप्लायर भी हैं, वो मुझे देख के हंस भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस बात का। और बहुत ज्यादा जैसे डॉल्मेन मॉल है उधर एक्टिविटी की, और हमने हमारे अपने स्कूल्स हैं, पिंगूज इंग्लिश स्कूल, तो उसके लिए भी हमने काफी मार्केटिंग की डिफरेंट तरीके से। डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में किया, 3.5 लाख रुपए दिए 2 दिन के। तो इसी तरह से डिफरेंट हम करते रहे, क्योंकि हमारे जितने भी कैंपसेस हैं जाहिर है उसको भी मार्केटिंग की जरूरत थी और हमने की। सम टाइम इट वर्कड, सम टाइम इट डिडंट, लेकिन हमारे पास बहुत ही कंट्रोल नहीं था। मतलब अगर हमने कोई चीज अगर रिलीज कर दी है, अब वी कैन नॉट स्टॉप, लेकिन हियर यू कैन स्टॉप। अगर आपने 5 रुपए भी खर्च किए, 10 रुपए खर्च किए, 100 रुपए खर्च किए, इफ इट इज नॉट सर्विंग टू यू, यू कैन स्टॉप एंड यू कैन चेंज द ऑडियंस, यू कैन चेंज योर क्रिएटिव एड। अच्छा, क्या ये जो बाहर की जो ऑडियंस है और जो ऑनलाइन ऑडियंस है, ये ज्यादा एक्चुअली इंक्लाइंड है टूवर्ड्स परचेज और टूवर्ड्स गिविंग रिस्पॉन्स? आई बिलीव यस। वाई? बिकॉज एक देखें, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जैसे जैसे ट्रेंड अपने अराउंड जब लोग देखते हैं एक दूसरे को, एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा होता है, तो वहां पर वो भी जाहिर है कि इंक्लाइन होता है कि अच्छा यार ये लोग कर रहे हैं तो ये ज्यादा स्मार्ट चीज है, तो आई शुड एक्चुअली लुक स्मार्ट एंड आई शुड रिस्पॉन्ड टू स्मार्ट मार्केटिंग ऑल्सो। तो ये जो स्मार्ट मार्केटिंग है, जिसे हम अपना फेसबुक मार्केटिंग भी कहते हैं, और वो एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैंने जब इसको करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज अ न्यू एक्चुअली
avenue for me to attract more customers easily with ease and speed. और मेरे पास मार्केटर्स थे, मैंने मार्केटिंग के लोग रखे हुए थे, और उन मार्केटिंग के लोगों को फिर मैंने नहीं रखा बिकॉज मैंने सिंपल अपनी सारी कैंपेन्स को ऑटोमेट कर दिया, और वो मेरे लिए जो है वो इस प्रोसेस को, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली वो चलता है और फिर मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है ना वो मिल जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है अवेयरनेस का। अब जब आप बाहर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बाहर भी आपके पास लोग हैं, यहाँ पे भी आपके पास लोग हैं। तो फेसबुक पे कितने लोग हैं? फेसबुक पे इस पर 2.35 बिलियन लोग हैं। दुनिया में 7 बिलियन है ना, उसमें से 2.35 बिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त फेसबुक पे एक्टिव हैं। 2019 की रिपोर्ट है, 2000 जनवरी 1 मार्च, आज 2 मार्च है, 1 मार्च की रिपोर्ट 2.35 बिलियन। अब आप बोलेंगे भाई हमें तो पूरी दुनिया में तो नहीं बेचना अभी, और ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी दुनिया में भी बेचना हो, क्योंकि कुछ लोगों की जरूरत हो सकती है पूरी दुनिया में अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराएं। तो हाउ वुड यू नो कि यार कराची में कितनी ऑडियंस है, हाउ वुड यू नो पाकिस्तान में कितनी ऑडियंस है, फिर पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री के अंदर कितनी ऑडियंस है, टेक्सटाइल के अंदर कितनी है, बिजनेस के अंदर कितनी है, एजुकेशन से रिलेटेड कितनी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जो मर्दमशुमारी उससे शायद इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन फेसबुक आपको ये बता देता है बिकॉज उसके पास डेटा है, उसके पास इन लोगों का डेटा है और वो लोग जो है यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो 25 साल से लेके और 34 साल तक के जो लोग हैं वो ज्यादा एक्चुअली इस पर एक्टिव हैं। और एवरेज एक पर्सन जो है, अगर 2.35 बिलियन की बात करें तो एवरेज 1 पर्सन इज स्पेंडिंग 20 मिनट्स, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें। लेकिन दूसरी रिसर्च ये कहती है जो यंगस्टर्स हैं, जैसे 18 साल से ऑनवर्ड और फिर 25 साल, तो कहते हैं कि वो सुबह उठ के ही एक्चुअली उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। दे एक्चुअली स्टे लॉन्गर बिकॉज दे हैव टू अचीव अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। दे माइट नॉट बी एग्जैक्ट आई मीन क्लाइंट फॉर योर नीड, लेकिन वो बहरहाल एक्टिव यूजर्स वहां पर होते हैं। अब जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, उसमें यंगस्टर्स हमारे क्लाइंट हैं, 18 साल और 25 साल के दरमियान। इंग्लिश लैंग्वेज भी हम बेच रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें बेच रहे होते हैं। तो आप इसके अंदर क्या सीखेंगे? अवेयरनेस क्रिएट करना सीखेंगे, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है एंगेजमेंट का, कि जिनको आपने अवेयरनेस डेवलप कर दी है तो उनको आपने एंगेज करना है। ठीक है, एंगेज करने का मतलब क्या है? एंगेज करने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी भी नए एरिया में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो लोग उधर शायद आपको नहीं जानते हों, तो जाहिर है कि आपकी एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। आप बताते हैं लोगों को कि मैं पहले फला फला जगह पे रहता था और अब यहाँ पे, और फिर आपसे मिलने के बाद एक्चुअली आप जो इमेज अपना छोड़ेंगे ना उस बंदे पे, वो एक्चुअली उसको याद रहेगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप अपने पड़ोसियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ जिस तरीके से बर्ताव करेंगे, कभी आपने कोई पड़ोसी को भेज दिया खाना पीना तो उसने कहा कि हाँ यार बहुत अच्छा है, तो ये एंगेज वो भी आपको करेगा, आप भी उसको एंगेज करेंगे। इससे होता क्या है, असल में क्या फायदा होता है? इससे दो फायदे होते हैं। एक कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और दूसरा रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो होती है ना वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप की बेसिस पे होती है। इसके बगैर आपकी सेल नहीं होगी, चाहे आप उछल लें, कूद लें, चाहे कुछ भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री ले लें, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे हमारी वाली जो एजुकेशन है जो कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से एक्सपीरियंस किया या आप लोगों ने यहां से एक्सपीरियंस किया, आपको इसका अगर फायदा होगा तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी बताएंगे, और फिर आप ज्यादा हो सकता है कि हमारा जो हाई प्राइस प्रोडक्ट है 3 मंथ्स का जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, अब आपका डाउट कम होगा तो आप डेफिनेटली यू विल टेक अ बिगर रिस्क। ठीक है, तो ये हर बिजनेस के अंदर होता है। कोई भी बिजनेस आप रन कर लें उसके अंदर ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि हाउ यू विल एंगेज योर ऑडियंस डिजिटली। पहली चीज हाउ यू विल क्रिएट अवेयरनेस, फिर हाउ यू विल एंगेज। ठीक है, और तीसरी चीज होगी वो होगी एक्शन। एक्शन, और फिर चौथी चीज, एक्शन का मतलब ये होता है 2-3 चीजें होती है। एक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो सपोज
किसी खास पर्टिकुलर वेब पेज पर भी अपने ऑडियंस को ड्राइव करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई भी पर्टिकुलर ऑफर है, आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है ना उस ऑफर को अवेल करे। सपोज फूड का प्रोडक्ट है, फूड के प्रोडक्ट में ये चाहे हो सकता है ये चाहे कि भाई मैं एक कैंपेन चलाता हूं जिसमें मैं 20% का कूपन देता हूं कि वो इस पर्टिकुलर जो हमारी मेन्यू में से ये जो पर्टिकुलर डिश है या कंप्लीट मेन्यू है उसको ये अवेल करें। नए लोग उसको अवेल करें। क्यों? इसलिए अवेल करें कि एक्चुअली आई ऑलवेज नीड न्यू पीपल टू ट्राई माई प्रोडक्ट और सर्विसेज। मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो मैं हमेशा चाहूंगा कि भाई अगर 1 लाख लोग जानते हैं तो अब 2 लाख लोग जाने, 2 लाख लोग जानते हैं तो 3 लाख लोग जाने, 3 लाख लोग जानते हैं तो 10 लाख लोग जाने। तो इसके लिए मुझे अवेयरनेस का जो सर्कल है वो भी चलते रहना पड़ेगा, उसको भी चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बकेट के अंदर जो लोग आएंगे वो बिल्कुल नए लोग आएंगे जिन्होंने मुझे ट्राई नहीं किया है, जो मेरे बारे में जानते नहीं है। तो वो मुझे चाहिए, क्योंकि दिस इज अ स्टेप, ये पहला स्टेप है। आज अगर फॉर एग्जांपल सपोज मेरी 1 मिलियन की सेल हो गई या 2 मिलियन की सेल हो गई, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो आपको जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो उसमें एक सर्कल आप अवेयरनेस का चलाते रहेंगे, जैसे हमेशा नए लोग आते रहेंगे। दूसरा सर्कल वो अवेयरनेस से आप बकेट दूसरी बकेट में डालेंगे जो कि एंगेज करेगी। यू गेट माय पॉइंट? तो यहां पे एक्चुअली लोग नहीं करते जो फॉर एग्जाम्पल जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब वो रन करते हैं ना कैंपेन, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं कैंपेन रन कर बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट बिकॉज यू परहैप्स डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब जब उसके अंदर आप अभी सीखेंगे तो आपको फिर उसके रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर नजर आएंगे, ठीक है। और मैं आपको अपने भी रिजल्ट्स दिखाऊंगा। इट्स नॉट दैट कि भाई ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई रिजल्ट है, मैं आपको भी रिजल्ट दिखाता हूं। एक्शन के अंदर फिर देखो, एक्शन को हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब, अब इनके केस में कन्वर्जन, फूड के बिजनेस के केस में क्या होगा कि इन्होंने एक कैंपेन चलाई और इन्होंने कोई ना कोई एक्चुअली मोटिवेशनल फैक्टर तो डाला ना नए लोगों को कि वो एक्चुअली आए और ट्राई करें, और उनका इन्होंने रिस्क रिड्यूस किया। इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, ये पर्टिकुलर चीज जो है ना वो ये पर्टिकुलर चीज आए और ये 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये 1 हफ्ते के लिए, 50% के लिए है। तो ये जो मजीद लोगों को उस प्रोडक्ट का टेस्ट करवाना, ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये स्ट्रेटेजी हर बिजनेस के अंदर आपके पास चलेगी, चाहे अब आपका कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 तरह के डाउट्स होते हैं, हमेशा याद रखें। जब भी आप बिजनेस में कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें 2 तरह के डाउट्स होते हैं। पहला डाउट उसको सप्लायर पे होता है, मतलब आपने अवेयरनेस क्रिएट की तो डेफिनेटली अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर मुझे पता तो चल गया, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड। आप चाहते हो कि मैं आऊं, आपने मार्केटिंग की और आप चाहते हैं कि मैं आऊं और आकर जो है वो आपसे खरीद लूं, चीजें ये कर लूं, हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो वजह क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं और आप उसको बहुत पॉजिटिव लीजिएगा, मतलब ये नहीं समझिएगा कि बिकॉज दैट इज एन एथिकल थिंग विच आई एम शेयरिंग विद यू, इट्स नॉट, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी एंड आई डोंट माइंड टू शेयर इट विद यू बिकॉज दिस इज रियली वर्किंग। एंड ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इट इज नॉट दैट आई एम डूइंग इट, द बेस्ट मार्केटर्स, ऑनलाइन मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, जैसे डिजिटल मार्केटर इंस्टीट्यूट जो है यूएसए का, जहां से मैंने सर्टिफिकेशंस ली हैं, वो उसका जो सीईओ है वो वर्ल्ड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर ये सारी कैंपेन रन करता है। वो एग्जैक्टली यही करता है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो बहुत पैसे बनाता है इससे, और मैं भी बहुत पैसे बनाता हूं, और आप भी बहुत पैसे बनाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अब वो क्या चीज है? वो ये है कि 2 तरह के डाउट है। पहला डाउट तो होता है सप्लायर के ऊपर कि भाई आया ये मुझे डिलीवरी दे पाएगा या नहीं। अब सप्लायर क्या करता है या कंपनी क्या करती है? वो कंपनी उसको एक्चुअली डिफरेंट तरीके से कन्विंस करती है कि देखो मेरे पास ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड है, देखो मैं इतना अच्छा हूं, देखो दूसरे लोग मेरे बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं। तो यहां से आप टेस्टिमोनियल्स के थ्रू और अपने डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू और आप उसका एक ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन एक दूसरा डाउट होता है जो कि उसको खुद पर होता है। वो कहता है कि नहीं ठीक है, कंपनी सही है, ब्रांड भी सही है, बट व्हाट इफ आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, और व्हाट इफ आई विल नॉट बी एक्चुअली, आई विल लुक फूल अमंग माय पीयर्स, जो मेरे
फ्रेंड का सर्कल है, जो मेरा रिलेशनशिप्स हैं, मेरे स्पाउस है। अब कोई छोटा सा प्रोडक्ट हो या सपोज अगर मैं किसी फैमिली को ले जाऊं किसी जगह पर और वो फूड है, देखो मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी रिस्क नहीं लूंगा अगर मेरे पास गेस्ट आए या मेरी फैमिली है किसी बिल्कुल ही नए रेस्टोरेंट पे, अनलेस कि आई एम प्रीटी श्योर कि आई विल गेट द बेस्ट वैल्यू। चाहे अब वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे आप मोबाइल खरीद लें, ठीक है ना, अगर आप प्रीटी श्योर नहीं, और जब तक आप कोई भी चीज नहीं खरीदते, जब तक कि आपको यकीन नहीं हो जाता कि अपनी अवेयरनेस के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक, जो आपने मतलब अपनी तगोदो की है उसके बारे में मालूम, उसके मुताबिक जब आपको पता चल जाता है और आप फील करते हैं सिक्योर, तो फिर आप डेफिनेटली जाते हैं और वो काम करते हैं और फिर वो ले लेते हैं। फिर उसकी बेसिस के ऊपर फिर आइंदा आप या तो टेररिस्ट बन जाते हैं उस बिजनेस के लिए, या फिर आप उसके लिए प्रोमोटर बन जाते हैं ना, मतलब आप फिर या तो उसको प्रमोट करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं, क्योंकि आपका दिल अंदर से खुश होता है। ये प्रोसेस जो है ये हमें इंप्लीमेंट करना होगा और यही गोल्स को अचीव करना होगा। अगर ये गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए कि व्हाट वी वांट टू अचीव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज की क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्स होगा। तो इसके अंदर जो मार्केटिंग का पूरा जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे अभी, तो यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, एक्शन, ठीक है। और इसमें ये अब अवेयरनेस में क्या है कि लोग आपको लाइक करें और फॉलो करें, ठीक है। एंगेजमेंट के अंदर क्या है, भाई देखो आपने फर्स्ट टाइम किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाया और वो अभी लाइक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये भी एक कन्वर्जन है दैट यू हैव टू अचीव, दैट इज अ कन्वर्जन। कन्वर्जन डज नॉट मीन, या एक्शन डज नॉट मीन दैट यू विल ऑलवेज गेट द मॉनेटरी बेनिफिट, खाली पैसे का ही बेनिफिट नहीं होगा। कन्वर्जन का हमारी इस मार्केटिंग कैंपेन के अंदर कन्वर्जन जो है, ये जो सेल्स है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दिस इज नॉट एक्चुअली जस्ट वन एक्चुअली जंप फ्रॉम 0 to 100, ठीक है ना। ये आपको पहले 15 पे लाना है, 15 से 20 पे लाना है, 25 पे लाना है, अपने उस टेम्परेचर को बढ़ाना है, कोल्ड से वार्म करना है और वार्म से हॉट करना है। सही है, क्लियर, यस और नो, ओके। मैंने कहा दो तरह के डाउट्स होते हैं ना, एक तो लोगों को खुद पर होता है और एक जो है वो सप्लायर पर। तो सप्लायर तो अपना बता देता है, जैसे वर्कशॉप कर देगा और वो बताएगा कि देखो मैं आपको फ्री ट्रेनिंग देता हूं, आप देख लें उसके अंदर, तो उसको यकीन आ जाता है। लेकिन दूसरा डाउट उसको खुद पे होता है, तो खुद पे जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि हम उसका रिड्यूस करें रिस्क। हम उसका जितना रिस्क रिड्यूस करेंगे इतना ज्यादा वो इंक्लाइन होगा। और मैंने अपने बिजनेस के अंदर भी इस चीज को तजुर्बा किया है कि जब आप फर्स्ट टाइम, या मैंने जो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, और मैं आपको बताऊं इसमें कोई वो मतलब मुबालगा नहीं है, मैंने 70 लाख रुपए तक के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उनको स्टडी किया है और उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं ये, और उसमें सर्टिफिकेट, और उसमें एबन पैगन जो कि ऑनलाइन $100 मिलियन की सेल करता है, उसके मॉडल को मैंने स्टडी किया, उसकी कॉपीराइटिंग को स्टडी किया, ठीक है। रेयान डेस जो डिजिटल मार्केटर का जो सीईओ है उसको स्टडी किया, उधर से मैंने सर्टिफिकेशंस की। ब्रैंडन बुर्चार्ड है, ये बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंसर है, लाइक मतलब आप देखें मिलियंस लोग जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भाई कैसे कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजीज को यूज करता है, उसको स्टडी किया। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खरीदे और उसके बाद मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ और फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट भी किया। तो उन्होंने भी यही किया कि वो ना रिस्क को रिड्यूस करते हैं। अब आप रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सपोज जस्ट लेट्स डिस्कस फॉर 5 मिनट्स। सपोज आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अब कोई भी एग्जांपल आप अपने बच्चे से फूड का है, तो फूड के अंदर अब जिन्होंने बताया है तो मैं उसका ज्यादा कर, बाकी लोग बता नहीं रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, वरना मैं उनके बारे में स्पेसिफिक बात भी कर सकता हूं। अगर फूड की बात हम करते हैं तो फूड के अंदर रिस्क रिड्यूस कैसे होगा। सपोज देखें, मेरा भी फूड का एक छोटा सा बिजनेस है, ये जो हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट है इनका तो बड़ा बिजनेस, हमारा छोटा बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेटेजी उसमें सेम यूज होती है। वो स्ट्रेटेजी क्या है, सपोज हम जो है ना नए कस्टमर को लाने के लिए हम उसको क्या ब्राइब कर सकते हैं कि भाई इफ यू परचेज 300 रुपीज सैंडविच यू विल गेट कुकी फ्री।
जो कि हमारा 100 रुपीज का कुकी है और हमारा 100 का ही उसमें मार्जिन होता है, वी विल नॉट मेक मनी इन दैट। लेकिन वो जो सामने वाला होगा उसको ये अगर मैंने अवेयरनेस, देखो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि वाकई ही मेरा सैंडविच 300 रुपए का है। अगर ये उसको पता नहीं और मैं ऑफर दे रहा हूं तो इट विल नॉट वर्क। उसको मेरी प्राइस का पता नहीं है और मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप जो है ना वो सस्ता ले लो और फर्स्ट टाइम में, तो इट इज लाइक आई एम एक्चुअली इट इज लाइक समवन इज ऑफरिंग लेट्स गेट मैरी इन फर्स्ट डेट। समझ में आ गई बात? तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको सबसे पहले अवेयरनेस, जैसे मैं अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए जाऊं कहीं किसी के घर पर और मैं बोलूं कि भाई मेरे बेटा जो है वो बहुत आलिम है, फाजिल है, बहुत खूबसूरत है और आप अपनी बेटी दे दें, तो दैट इज नॉट द आई मीन थिंग आई विल गेट इन फर्स्ट टाइम। दे विल से ओके नो प्रॉब्लम, यू लुक गुड, ओके वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल डू सम रिसर्च। ये जो सेकंड फेज है ना अवेयरनेस के बाद, जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में वो बंदा उसमें चला जाता है आपके रिसर्च के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर, वो इवैल्यूएट करता है आपको। तो कोई भी पर्सन होगा, कोई भी आपकी ऑडियंस होगी, वो आपको इवैल्यूएट जरूर करेगी और इवैल्यूएट देखेगी कि वो ऑल्टरनेट सप्लायर को देखेगी, ठीक है, वो लोगों से पूछेगी आपकी ऑडियंस कि भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में। कोई आप देखें आजकल तो फोरम्स है ना, उस फोरम पे वो लिख देते हैं खाली जाके क्या टेल मी अबाउट दिस प्रोडक्ट, टेल मी अबाउट। आजकल आप देखें ना हमारे कराची स्कूल ऑफ गाइड पे लोग हैं और उसमें अच्छी खासी ऑडियंस है हमारे स्कूल के बारे में। जो नया बंदा होता है वो बोलता है अच्छा बताओ भाई पिंगूज इंग्लिश स्कूल कैसा है, कोई और चीज के बारे में पूछता है कैसा है, ठीक है। तो ये लोगों के लिए आजकल कोई मुश्किल नहीं है। तो डिजिटल मीडिया जो है ना वो अच्छा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि आप जिस तरीके से अपना नाम बनाते हैं वैसे नाम आपको गंवा भी सकते हैं क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है। तो लेकिन उसकी भी स्ट्रेटेजीज हैं उसकी, और मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट यू नो एंड यू कैन अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज टेलिंग यू कि मैं तुम्हारे से नाराज हूं, तुम जरा मुझे मना लो तो मैं ठीक हो जाऊंगा और आई विल बिकम योर फ्रेंड, ठीक है। हाँ बताएं। हमने देखा कि भाई किसी वक्त कोई पेड एलिमेंट होता है, कैंपेन होता है, अब सामने कंपटीशन है, हाँ उसने कॉल कंपनी या उस तरह का ग्रुप फाइल किया हुआ है जिसने 16-17 कमेंट उसके ऊपर डेबिटरी डाल दी। वैसा फोल्डर में ऐसे स्पॉट है जिसके ऊपर बात हो रही, आपकी प्रोडक्ट वहां गई, किसी ने उसकी तारीफ की, लेकिन आपका कंपटीटर बैठा है ना, उसने किसी के साथ चाहे वो पिज्जा हुआ, चाहे वो हमारा स्टेक हुआ, उसके ऊपर डाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं समझ गया। इस जगह पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके अपने टीम मेंबर्स भी उस फोरम पे हों और जो आपके लॉयल कस्टमर्स को उन फोरम्स पे इनवाइट करें, ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। अगर आप उनको अपने कस्टमर्स हैं, मुझे पता है कि देखो किसी भी बिजनेस के अंदर ना आप 100 लोग आएंगे तो 100 को एग्जैक्टली सेम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी सम ग्रीवेंसेस बाय समवन, ठीक है ना। तो जो अच्छे लोग हैं ना वो हमेशा आपके लिए करेंगे, ठीक है, और यू कैन क्रिएट एज सम इंसेंटिव ऑल्सो, दे आर योर एडवोकेट, दे आर योर, उनको आप इन्वाइट करके उस ग्रुप में डालें। और होगा क्या कि जब आप कोई पर्टिकुलर, अगर तो ये फोरम की बात हो रही है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये मैं फोरम की बात कर रहा हूं कि इतने ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप पे आप अगर हैं, आपका ब्रांड है, तो आप जैसे ही कोई चीज बोलेंगे ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसके बारे में उसको डाइल्यूट करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इसमें अच्छा क्या होता है कि अगर आपके पास अपने 12-15 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि आपके अपने भी हों और प्लस आपके कस्टमर्स भी हों, लॉयल कस्टमर्स भी हों, तो वो डेफिनेटली उस जगह पर जब बोलना शुरू करेंगे तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा फौरन से। लेकिन ग्रेजुअली आपकी ऑडियंस, जो लॉयल ऑडियंस है ना, वो बिल्ड होगी, बिकॉज इफ यू आर रियली अ गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेफिनेटली योर ऑडियंस विल ग्रो, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ही, ये मेरे प्रूवन तरीकेकार है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आल्सो एक्सपीरियंस्ड एट फिंगूज इंग्लिश स्कूल व्हेन वी एक्चुअली एंटर्ड इन कराची। ये जो स्कूल ऑफ गाइड है और उसमें जब हमने स्टार्ट किया मार्केटिंग करना, तो
ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने आके जो है ना वो अपना भी किया। तो व्हाट वी डिड, वी इनवाइटेड ऑल पेरेंट्स, और हमने पेरेंट्स को एक्चुअली उसके ऊपर लेकर आ गए, और प्लस हमारे टीम मेंबर्स भी बहुत सारे हैं तो हमने उनको भी डाला। तो अब होता था क्या कि हमारी तो खैर वहां पे तकरीबन 7 लोग हैं मार्केटिंग की टीम के अंदर ना, सोशल मीडिया। तो इसको कहते हैं सोशल लिसनर, इसे कहते हैं सोशल लिसनर, कि आप सोशली लिसन करेंगे व्हाट पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू। एंड जैसे आपका फेस टू फेस जब आप मीटिंग करते हैं लोगों से और उसके अंदर डेफिनेटली आपके बारे में कोई बंदा कहता है तो आप उसको कन्विंस करते हैं, उसको एक्चुअली पॉजिटिविटी पे लेकर आते हैं। तो डिजिटली भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है कि चूंकि अब हमारे पास डिवाइसेस हैं और इस पर हम बैठ के बहुत जल्दी अपनी परचेजिंग भी कर लेते हैं, ऑर्डर्स भी दे देते हैं और फीडबैक भी दे देते हैं कम्युनिटी में। और यहां पर फिर भी एज कंपेयर टू वर्ल्ड वाइड कम है, यहां पे कम है, वहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ये ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। तो आप जब उसको करेंगे तो उससे आपका वो वाला पार्ट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट दूसरी स्ट्रेटेजीज को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन मिस्टर वकास? हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा तो यूं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है ना, देखो अथॉरिटी विल टेक टाइम कि हाउ मेनी लॉयल कस्टमर्स यू हैव एंड हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस यू। तो कॉम्पिटिटर है वो भी जाहिर है, और आप दूसरे लोग जब लाएंगे वो सिमिलर प्रोडक्ट होगा तो आप भी जंप इन करेंगे कि यार हमारा भी प्रोडक्ट है, तुम देखो इसको। तो दैट एक्चुअली बैटल विल कंटिन्यू। हाँ, ये तो चलेगा हर वक्त। क्लोथिंग का, यस। मेरे हिसाब से अवेयरनेस में बाय वन गेट वन फ्री नहीं देना चाहिए। अवेयरनेस में क्या क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं, अभी बताया नहीं, मैं बताता हूं यार। अवेयरनेस में देखो बाय वन गेट वन फ्री जो है ना, हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जी जी, मैं आ रहा हूं उस पर, मेरे बस आप 2 मिनट दें, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक बात लास्ट खत्म कर दूं, उस पे आ रहा हूं। हाँ, देखिए कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है ना, उसके अंदर एक्चुअली पीपल बाय आउटकम एंड रिजल्ट्स। पीपल बाय आउटकम एंड रिजल्ट्स। इफ यू आर अ फ्रीलांसर, इफ आई एम अ ट्रेनर, you bought this workshop from me, my job is to deliver you the end outcome that you should be able to run your own campaign and profitable campaign. This is an objective, ठीक है। जब आप कहते हैं कि मैं फ्रीलांसर, मैं अपने आप को कैसे सेल करूं, तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या देखो कोई ना कोई पेन है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है और कोई ना कोई चैलेंज है, ये 3 चीजें, पेन, प्रॉब्लम और चैलेंज, ये 3 में से कोई भी चीजें होती हैं जब आप ऑडियंस को देखेंगे कि उनको हेल्प चाहिए होती है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई इसका इसका जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है और ये जो पेन है, आप उसको किस तरीके से अपनी सर्विसेज से खत्म कर सकते हैं। कोई पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे जो है, मैं अपनी कैंपेन रन नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कोई कहेगा मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूं लेकिन वर्क नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे हाँ मैं ये भी कर सकता हूं, डोंट वरी, आई विल गिव यू गारंटीड रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। तो फिर आपसे वो ले लेगा, सही है। तो एंड आउटकम के ऊपर आप करें। ये वाला जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, अवेयरनेस, इंगेजमेंट और एक्शन। मैं उसको किस तरीके से देखता हूं, मैं उसको देखता हूं टेल, जेल एंड सेल, ठीक है। टेल के अंदर यू विल क्रिएट अ मैसेज। क्रिएट अ मैसेज, जब हम डिजिटली बात कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, मतलब टेक्स्ट ऐड भी हो सकता है। ऐड की बात कर रहे हो ना कि भाई अब आप यूं समझें कि एक्चुअली जब आप इन रियल वर्ल्ड जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरों के साथ, तो आप जब मिलते हैं नए लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो व्हाट डू? यू एक्चुअली इंस्पायर दैट पर्सन। आपकी इंटेंशन ये होती है, भाई कौन यहां पे नहीं चाहता, अब वो इंस्पायर में करने में सक्सेसफुल हो ना हो, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंटेंशन तो यही रहती है ना। कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि यार मैं इसको एक्सपायर करूं,
इंस्पायर करने के लिए करते हैं ना। तो हमारा जो पहला जो क्रिएटिव आर्ट वर्क होगा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे नए नए लोगों से जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम एक्चुअली इंस्पायर करेंगे, दैट विल बी आवर इंटेंशन। अच्छा, इंस्पायर करने में पर्सन लाइक करता है कि डिसलाइक? जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो वो आपको लाइक करता है ना? आप किसी को इंस्पायर करेंगे तो आपको लाइक करेगा ना। तो अब आप इसको चेक करें कि फेसबुक के अंदर मुझे क्या चाहिए, लाइक करेगा तो इंस्पायर हो रहा है ना, वरना इंस्पायर नहीं हो रहा। अभी जरा कुछ चाहिए उसको, मजीद मेरा इन्फ्लुएंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जेल करेंगे, हम दोबारा से करेंगे, हम ओवर कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। चेंज मैनेजमेंट के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती है कि भाई किसी भी मैनेजमेंट के अंदर चेंज लाना हो, कोई नई पॉलिसीज है, कोई नई आदत बनानी है लोगों की, कोई नया मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट एटीट्यूड और बिहेवियर चाहिए, तो आप ओवर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर चेंज चाहिए किसी के अंदर तो अक्सर लोग हम क्या करते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम बोल देते हैं तो फर्स्ट टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार अच्छा आप दोबारा बोलेंगे नाराज हो जाएगा। मार्केटिंग में नाराजगी नहीं होती। डिजिटल के अंदर तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यू कैन ब्लॉक अदर पर्सन इफ यू डोंट लाइक, तो व्हाई यू आर वरीड? इफ समवन विल नॉट लाइक मी दैट पर्सन कैन ब्लॉक मी। ठीक है, अब जब वो हमारी असिस्टेंट थी उसने बताया कि सर मैंने कल सबको भेजा कि दिस इज लास्ट कॉल, ठीक है, कि आपको अगर इसमें वर्कशॉप में जाए दिस इज लास्ट कॉल। तो बोला, एक बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वजह यह है कि हर पर्सन किस तरीके से परसीव कर रहा है, लेकिन देखो अगर वो चाहता है कि भाई उसको मैसेजेस मिले, वो अभी ये प्रोडक्ट नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जब आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा डज नॉट मीन दैट पर्सन डज नॉट वांट योर प्रोडक्ट। वो कहता है कि अभी नहीं चाहिए बस, और कभी नहीं चाहिए तो ब्लॉक कर दो। इफ यू हेट मी जस्ट ब्लॉक मी, जस्ट डिसएसोसिएट मी। समझ में आ गई बात? तो आपने अपनी मार्केटिंग की कैंपेन के अंदर इस माइंडसेट के साथ काम करना है कि योर जॉब इज टू टेल पीपल as much as you can, but ethically. It's not that you just do bombardment and irritate other people, लेकिन strategically। और strategically क्या मतलब ये होता है कि आप हफ्ते में 3 मैसेजेस भेजें। कुछ प्रोडक्ट के अंदर आप किसी ने आपको सब्सक्राइब करवाया है तो आप डेफिनेटली उसको रोज करें। फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस की बात हो रही है, मैं अब आपको बता दूं, जिसने भी पूछा मुझसे कि फेसबुक पे हम ऑडियंस कैसे करेंगे, फेसबुक पे एक याद रख लें कि 2 तरह की अप्रोचेज हैं। आपने पूछा था, अब वो यहां पर आ गया और मैं यहां पे 5 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में, ताकि मैं इसको लिंक कर दूं आपके फेसबुक से। वो ये है कि फेसबुक जो है ना, वो उन पेजेस को ज्यादा प्रोमोट करता है लोगों के पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, फ्री ट्रैफिक के लिए, जिस पर रोज की कम से कम एक पोस्ट जरूर हो, कम से कम एक पोस्ट जरूर हो। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस पेज तो बनाते हैं, अपना बिजनेस पेज बनाते हैं, लेकिन बिजनेस पेज के अंदर वो एक आज पोस्ट लगाई, फिर वो 2-3 दिन कुछ नहीं होता, फिर कभी लग जाती है, फिर कुछ नहीं होता। तो ऐसे पेज को फेसबुक प्रोमोट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि 2 बिलियन से ज्यादा तो पेजेस हैं, खाली बिजनेस पेजेस हैं, एक एक के पास पता नहीं कितने कितने हैं। मैं तो एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूं 2.35 जो पेजेस हैं, जो बिजनेस पेजेस। अब एक पर्सन 20 मिनट्स एवरेज लगा रहा है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक हमसे क्या चाहता है? फेसबुक हमसे क्या चाहता है? हाँ, वो हमारा ज्यादा टाइम चाहता है, वो हमारी प्रेजेंस चाहता है, ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा एड दिखा सके। वो इसलिए नहीं है कि हम अपनी सोशल शेयरिंग कर सकें कि हम कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसी वजह से वो हमें बहुत जबरदस्त रिसर्च करके ऐसी आसानियां करके देता है कि तुम जो है वो अपनी इमेजेस शेयर कर लो और क्रिएटिवली शेयर कर लो और आसानी से शेयर कर लो और जो है वो इंगेज करो और लोगों को बताओ। आज से पहले, अब देखो, पहले इनविटेशन हमें बाकायदा कार्ड पे जो है ना, उस पे मिलता था ना, फिजिकल कार्ड पे।
अब मैं देखता हूं कि रोज ही हर ऑल्टरनेटिव पे इन्विटेशन आ रहा होता है, सारी चीजें आ रही होती है, तो अब चीजें आसान हो गई हैं, वर्क भी कर रही है, लोग उसको परसू कर रहे हैं। तो ऑडियंस को बिल्ड करने का पूरा मॉडल अभी नीचे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि फ्री ट्रैफिक के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज की एक पोस्ट जरूर लगनी चाहिए। 2 लग जाएं, 8-8 घंटे के डिफरेंस है तो क्या ही बात है। और मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ 10 मिनट के अंदर ये बताऊंगा कि आप में से अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कभी ऐड नहीं बनाया और उसको कोई ऐड का पता भी नहीं है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव एड्स बना सकता है। और आप लोग अपनी टीम के मेंबर को बता दें, वो बहुत आसानी से आपका वक्त बचा देगी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपके जो है ना वो एंगेजमेंट। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, एंड दिस इज ऑनेस्टली दिस इज अ ग्रेट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि देखो मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, ठीक है, बट आई हैव पीपल हु आर ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन मैं खुद जाती तौर पे ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं। और मुझे बाज दफा ना इतनी डिपेंडेंसी फील होती थी कि यार अब मैं अपने पर्सन को बोलूं कि यार वो बनाएगा, वो जब तक बनाएगा मेरे जहन में आइडिया ही एक्चुअली रहेगा या वो एंथुजिज्म रहेगा। तो मैंने जो है वो एक टूल यूज किया और उसके अंदर ना मुझे जब चाहता हूं मैं बगैर किसी की डिपेंडेंसी में 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में बेहतरीन आर्ट वर्क बना लेता हूं और उसको डिजिटली जो है ना वो प्रमोट कर देता हूं और फिर मैं एंगेज करता हूं, मुझे मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो वो लोग जो कि खुद डिजिटल मार्केटर, वो डिजिटल मार्केटिंग का टूल है, मैं आपको बता देता हूं, डिजिटल मार्केटर्स के लिए ही है, वो बनाया भी डिजिटल मार्केटर्स के लिए। तो आप उसको अभी थोड़ी देर में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और फिर आप उसको आइंदा यूज कीजिएगा। और उसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वर्कशॉप रखा। आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम, आई जस्ट ओनली स्पेंड 15-20 मिनट्स टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशॉप मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ, मैं आपके पोर्टल पे डाल दूंगा, तो आपको वो डिटेल मिल जाएगा। और फिर असल में आएगा आपको तब जब आप खुद उसको करेंगे। बिकॉज हमारे पास जैसे कोई कोच हो, वो उसके पास कोई आए कि भाई मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो कोच के अपने एक्सरसाइज करने से उसका वेट रिड्यूस नहीं होगा जब तक कि वो खुद एक्चुअली एक्सरसाइज ना करे। या मैंने अगर आपकी नमाजें पढ़ना शुरू कर दी तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको खुद नमाज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नहीं हो रहा तो हमने दोबारा रिपीट करना चाहिए, इसमें रिसर्च क्या कह रही है, ये मैसेज सेम होना चाहिए? देखो नहीं, सेम भी होना चाहिए और आप एक सर्टेन टाइम पे चेंज भी करेंगे। देखें रिसर्च ये कहती है कि जो जैसे एक खातून है मेलिंडा, ठीक है, उसका कोचिंग का बिजनेस है, वो कोच करती है और ऐसे लोगों को कोचिंग करना सिखाती है जिन्होंने कोचिंग की सर्टिफिकेशन तो ली हुई है लेकिन उनके पास क्लाइंट नहीं है, ठीक है। वो रिकमेंड करती है कि भाई कम से कम 5 दफा उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप जरूर उसको करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 98% पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड यू, 98%। बाज मार्केटर्स कहते हैं कि 99% पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू। अब आप कहते हैं बाय, तो बाय का मतलब ये लाइक, आपको लाइक करना भी बाय है भाई, आपको मैंने कमेंट करना है ये भी बाय है, बिकॉज आई एम बाइंग यू, आई एम कंसिडरिंग यू वर्दी टू कमेंट ऑन योर पोस्ट और लाइक योर पेज और लाइक योर पोस्ट और शेयर योर पोस्ट। ये काम भी मैं क्यों करूं? आप करते हैं क्या दूसरों के लिए? आप करते हैं लोगों की ऐसे ही लाइक करना शुरू कर देते हैं क्या? नहीं करते ना। तो भाई why other people will like you? They need a reason। और रीजन के लिए डेफिनेटली आपको जब आप अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि डिफरेंट तरीके क्या हैं उसके, लेकिन 5 दफा कम से कम आपको करना है। और मैं आपको अपना भी एक प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ आई इनरोल माई पीपल इन माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा एक चीज ये, फिर यहां पे बेहतरीन जो दूसरे बड़े बड़े मार्केटर्स हैं उनको जब मैंने स्टडी किया, और मैं 5 पे नहीं करता, मैं तब तक करता रहता हूं जब तक कि मेरा दिल जो है ना मुतमईन नहीं हो जाता। मैं 17 दफा भी करता हूं, मैं 19 दफा भी करता हूं। और मार्केटर्स बाहर, आप रिसर्च कर ले, आप गूगल कर ले जाके कि यार हम जो वो करें। लेकिन देखो ये भी ना हो, मैं ऑप्शन, जैसे मेरी ईमेल मार्केटिंग होगी तो मैं नीचे लिखता हूं भाई इफ यू वांट टू अनसब्सक्राइब प्लीज अनसब्सक्राइब, यू डोंट टेक माय मैसेज, ठीक है। और इसी तरीके से
मेरी जो होती है ना भेजने का मतलब ये नहीं होता स्ट्रेटेजी, मैं कह रहा हूं स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। बाज दफा हमें चेंज करना होता है मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल अब कल एक गुलरुख ने ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप के अंदर जो है ना वो सभी लोगों ने एक्चुअली रजिस्टर नहीं कराया था, लेकिन जितने लोगों ने भी रजिस्टर कराया था उसमें काफी लोगों ने कहा था कि हम कल आएंगे। देखो उनके पास ऑलवेज ऑप्शन था कि वो आए या नहीं आए, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो एक आपने देखा कि उसने डेफिनेटली कोई ना कोई एंगेजमेंट की होगी, कोई ना कोई उसने मैसेजेस आपके साथ किए होंगे टू रेज योर इंटरेस्ट, ठीक है ना। दैट इज एन एथिकल थिंग, दिस इज नॉट अनएथिकल थिंग, ठीक है ना। यू शोड योर इंटरेस्ट कि यस यू वांट टू डू इट, नाउ अदर पर्सन विल एंगेज यू, सो यू शुड नॉट आई मीन फील डिस्कनेक्टेड। जैसे आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन वकास? तो सेकंड उसमें हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, डिजिटली एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, ठीक है ना। और ये चीज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, देखो कैंपेन को कॉन्फ़िगर करना इज नॉट अ आई मीन कोई बहुत बिग टास्क या बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, और मैं भी आपको कपल ऑफ मिनट्स में दिखा दूंगा। लेकिन इस चीज की अवेयरनेस के साथ जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना तो उसका रिजल्ट आएगा। मैनी मार्केटर्स आर स्ट्रगलिंग, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो एजेंसीज चला रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आई मीट मैनी पीपल, दे कम दे शेयर, इनके एड अकाउंट्स बंद हो जाते हैं बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम आई मीन देयर ओन सोर्सेज, और उनका फिर लिमिटेड विजन रहता है। यू गेट माई पॉइंट? तो ये पर्टिकुलर चीज जब आप इसको ये इस तरीके से जब आप उसको करेंगे तो यू विल बी आई मीन ऑन ट्रैक, और आपका वो ट्रायल एंड एरर वाला फैक्टर जो है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की हद तक रह जाएगा, ठीक है। एंड आई अप्रिशिएट दैट यू पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन, आई एम हैप्पी बिकॉज हुस्नुल सवाल निस्फुल इल्म, आपका जो है ना अच्छा सवाल जो है वो आधा इल्म होता है। तो प्लीज डू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू हैव इन योर माइंड। इन्फ्लुएंस के बाद अच्छा कंटेंट की बात क्या हो रहा है, देखो वो कंटेंट था जब गुलरुख ने एक्चुअली उस पर शेयर किया ना, दैट इज अ कंटेंट, एंड दैट कंटेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, दैट कैन बी इमेज, दैट कैन बी वीडियो, और दैट कैन बी आई मीन टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। असल मकसद क्या होता है कि वर्ड्स नहीं, वो एक्सपीरियंस, वो मैसेज, चाहे वो वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट हो, चाहे इमेज के थ्रू कम्युनिकेट हो, चाहे टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेट हो, वो जो मैं मीनिंग क्रिएट कर रहा हूं और उसकी बेसिस के ऊपर जो मेरे इमोशंस जो एक्टिवेट हो रहे हैं और जो फीलिंग जनरेट हो रही है ना, दैट इज द मेन थिंग दैट ड्राइव्स एनीवन टू बाय। और मैं अगेन कह रहा हूं, बाय मींस डज नॉट कि सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट्स, बाय मतलब एनीथिंग, you actually convince other people to to cooperate with you, to like your page, to share with you, to give you their contact details, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दे दे, ठीक है। और सेलिंग जो है अगेन जैसे आपने पूछा कि भाई मैं कैसे सेल करूं, you always sell benefits, you always sell benefits, what is the benefit, ठीक है। जैसे उनका फूड है तो उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, मे बी द रिड्यूस कॉस्ट इन I mean the kind of value he is actually delivering, that is one of the reason कि भाई people will buy, because that is a benefit कि this kind of food, this kind of environment I can actually buy in this is one of the benefit, so they can compare their price with other competitors, और उसको ये ज्यादा एक्चुअली अवेयरनेस दे। देखिए हर बेनिफिट की अवेयरनेस देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिए 5 बेनिफिट्स जो आपके कंपेटिटिव एडवांटेज है, भाई आपका प्राइस आपका कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है कि मैं सेम चीज एक छोटी सी दुकान पे बेच रहा हूं लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर माई कस्टमर, एंड माई कस्टमर विल बी डिफरेंट। I should not sell my product to everyone. Everyone is not buyer of my product and services. ठीक है ना। तो ये बात भी जहन में रखें कि if someone is not buying does not mean कि वो इसके पीछे 4 क्वालिफिकेशंस होती हैं कि जब कोई भी पर्सन आपसे बाय करता है उसमें एक चीज उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होती है। और अफोर्डेबिलिटी ये नहीं कि आज उसके पास कितने पैसे हैं, अगर उसको ये पता चल जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके अंदर ये डिजायर होती है, तो पैसे वो कहीं से भी लेके आता है।
समझना की बात। तो उसको अगर वो चाहिए तो पैसे का बंदोबस्त खुद करता है, तो अफोर्डेबिलिटी ही है, मतलब ठीक है। और आपके पास आपका एक मार्जिन होना चाहिए कि भाई ये ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं जी। Affordability can also be how it will affect you in the long run. मेरे लिए आगे जाके कैसे ये मेरे कैसे होगा, जिसको ये सोचते हैं कि अभी कैसे, वो कभी नहीं सोचते कि ये जो अभी कर रहा हूँ वो आगे जाके क्या कर सकता है, वो भी अफोर्डेबिलिटी। लेकिन ये करवाना चाहिए। हाँ, ये सेल्स का पार्ट है, ये सेल्स का पार्ट है कि ऑलवेज एक्सटेंड योर आई मीन बेनिफिट टू अदर पीपल ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूंगा, मैं अपनी चलो सारी सीक्रेट्स बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, मैंने कहा आपके पास, आपको अगर मुझे सेल करना है तो मैं बोलूंगा यार देखो यू विल गेट दिस वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर सिस्टर, you can train your brother, you can train your team member. So when you will extend the benefit of your product and services, other people will be more, I mean, inclined to buy from you because they will also create this image in their mind कि yes. And होता क्या है कि बस जो पैसे आप लगा रहे होते हैं, जब आपको ये पता चल जाता है ना, it is a good buy, तो you always take risk. There is always a risk whenever you actually go and buy. सही है? ओके, यस और नो? तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ सो फार? ओके, अब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आप लोग अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। आपने 5 थिंग्स बताया, प्राइस, एक्सपीरियंस, 15 मोर, 5 थिंग्स किसी में बेनिफिट, प्राइस, एक्सपीरियंस। अच्छा, उनका वो मैं उनका बता रहा था कि हो सकता है कि देखें उनका, हाँ सॉरी, हो सकता है कि देखें उनका जो है ना, देखो मैंने उनका ज़ाहिर खाया हुआ तो मुझे पता है कि उनका कंपेटिटिव एडवांटेज एक प्राइस भी है कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर दूसरे लोग नहीं दे रहे जिस प्राइस में वो वैल्यू दे रहे हैं, तो दैट कैन बिकम देयर कंपेटिटिव एडवांटेज। लेकिन मैं इनसे ये पूछूंगा कि हाउ मेनी पीपल नो दिस थिंग, ठीक है ना, कितने लोगों को पता है कि यू आर एक्चुअली बेटर देन इन योर प्राइस फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। तो अब अगर इसकी अवेयरनेस चलाएं, कंपैरिजंस बताएं, एड बनाएं कि एक्चुअली हाउ मच वी आर चार्जिंग एंड दिस इज अ कंपैरेटिव एडवांटेज। और फूड के अंदर तो लोग 50-50 रुपए के लिए वो कर रहे होते हैं कि यार 50 रुपए कहीं से कम में मिल रहा था, वहां से खा लूं जाके। तो दैट इज इफ दिस इज देयर कंपैरेटिव, तो दे शुड स्केल देयर अप, ठीक है ना, अपना मैसेज जो है उसको मजीद एक्सपेंड करें और एक कैंपेन बाकायदा ऐसी चलाएं कि जिसके अंदर लोगों को पहले ये तो पता चले, और ये बात सच है, तो भाई शुड एक्चुअली वी स्टॉप एंड कीप इट इन आवर हार्ट ओनली, और लोगों को खुद नहीं पता चलेगा। और अगर एक पर्सन के एवरेज 200 फ्रेंड्स होते हैं, एवरेज, ठीक है, किसी के ज्यादा किसी के कम, आप में से भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है किसी के 50 फ्रेंड्स हो, किसी के 400 फ्रेंड्स हो, है कि नहीं, लेकिन 200 रिसर्च है, 200 एवरेज फ्रेंड्स होते हैं। तो यार आप अगर इस पे बिलीव करोगे कि यार ये फ्रेंड्स को बताएगा और उससे मेरा वर्ड ऑफ माउथ होगा, तो दैट विल हैपन। लेकिन आप अगर चाहते नहीं हो एक्सेलरेट करे आपका मैसेज, तो फिर आप रन कैंपेन ताकि लोगों तक पहुंचे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं अपने उससे प्रोडक्ट सर्विसेज से भी, सही है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो ये होती है कि जब हम मैसेज दें तो मैसेज कैसे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं भाई हम मैसेज दें तो कैसे दें, क्या मैसेज दें। और अगर सपोज मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो हूं जानता हूं, लेकिन बाज दफा मुझे फिर नया कोई प्रोडक्ट आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है, मैं उसके बारे में किस तरह से मैसेज क्रिएट करूं, तो उसके लिए मैं आपको एक हेडलाइन फॉर्मूला देता हूं। आप उस हेडलाइन फॉर्मूला को हमेशा यूज करिएगा, ठीक है, मैं भी दूंगा आपको। तो आपका पहला स्टेप ये है मैसेज के अंदर के राइट योर हेडलाइन। दूसरा ये है कि आप डिजाइन करें अपना एड, ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि आप सेलेक्ट करें चैनल्स। मैं सेलेक्ट चैनल का इसलिए बोल रहा हूं कि देखें यही प्रोसेस जो है ना, जो आप सीख रहे हैं, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। Once you have understood the process, you can run this process at any platform, social media platform like Facebook, Twitter, LinkedIn और आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म, Instagram, बिल्कुल सबके इंटरेस्ट, बिल्कुल। Is this clear?
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंगेजमेंट में कमेंट और इंटरेक्शन थ्रू कंटेंट, एक्शन, सेल। अच्छा, अब मैं आपको जी बेटा वो स्पीकर भी लगा हुआ है। हाँ वहाँ पे जितने भी एड करते हैं तो मतलब उनके रिस्पॉन्स ऑडियंस के रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादातर ये कस्टमर साइलेंट होते हैं, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा बयान ज़्यादा अच्छी होती है तो अपनी जुबान में ये रिप्लाई करते हैं। तो उनको जब मैं रिस्पॉन्स करता हूँ तो उनके मतलब चांस बहुत कम होते हैं। तो आप उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि टर्न ट्रांसलेट। हाँ हर प्रोडक्ट मतलब हाँ एक्सपीरियंस तो मैंने 2-3 महीने थाईलैंड को हायर किया, उन्होंने काम किया तो मतलब सेल्स मेरी बढ़ गई। हाँ, तो अच्छी बात है। मतलब तो ये तो ये दुकान कैसे चलती है ना? क्या करती है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल एक मैसेज जो है वो समझ में मुझे नहीं आ रहा और अब नाउ आई हैव क्वेरीज, अगर आप वैसे भी अपना प्रोडक्ट कराची में भी करेंगे और अगर लोग उस पर कमेंट्स करेंगे, आस्क करेंगे ना, क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन अब सपोज उस क्वेश्चन के ऊपर आप उसको आंसर चाइनीज में देंगे तो दे विल नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड, विल दे? आपकी ऑडियंस एक नहीं है ना, आपकी ऑडियंस थाईलैंड में भी है, आपकी ऑडियंस जो है वो यूएई में भी है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर आई मीन अप्रोचिंग टू पीपल इन थाईलैंड, तो उधर जाहिर है उनको मैसेज कैसे आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? वो आपका जब तक लैंग्वेज आपकी वो नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो ये तो अच्छी चीज है। हाँ, और आप हर दफा उसको ट्रांसलेट अगर जैसे वो करके और समझ सकते हैं कि भाई आप जब मैसेज करें तो फिर जाहिर है उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर लिमिटेशन है। तो इसमें आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना हाँ, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना कि आपको जाहिर है कोई ना कोई पर्सन इसके लिए चाहिए होगा जो कि उस जबान को कन्वर्ट करे। अगर आप ऑटोमेट करेंगे, सपोज थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि पीपल, देखो मैं एक बात बताऊं, चीजें जितनी भी डिजिटल हो जाएं लेकिन एक सर्टेन लेवल पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए लोगों को। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप यहां पे एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं और मैं वो चीज ना कराऊं तो आपको कैसा फील होगा? है ना, मजा नहीं आएगा ना, मतलब रिस्पॉन्ड आप देंगे, आप रिस्पॉन्ड भी नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम। तो यही वजह है ना कि एक्चुअली जो मैच करना ना उसके साथ, इसे हम हाँ मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने अगर उसको सेटिस्फाई, अगर आपकी लैंग्वेज, वो तो आपसे डरेगा, तो फेयर भी हो सकता है फिर आपसे खरीदने में कि भाई बाद में आप बोलोगे कि भाई हु आर यू, समझ में आ गया? हाँ, और उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे रीजन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, वो इंग्लिश नहीं प्रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड समवन एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज। इसके अलावा जो दूसरी कमांड हम यूज करते हैं नॉर्मली दैट इज थ्रू इमेजेस। तो नो अपना मैसेज इनके लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये उनको अपने एक्शंस से जो बताया कि यार व्हाट वी आर और वी कैन डू फॉर, तो इस तरह से भी इसको करने की है, बट एटलीस्ट लैंग्वेज पर। अच्छा, अब मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ कैंपेन जो मैंने चलाई थी और उस कैंपेन के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए और फिर उसी को हम सीखेंगे कि आप लोग कैसे उसको रन कर सकते हैं फॉर योर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस पेज वो होता है कि व्हेन पीपल विल सर्च यू, योर पेज विल आल्सो कम इन गूगल। ठीक है, तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक अगर मैं ये देखूं ना, देखो मेरे पास है ना यूरिका डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट नहीं थी आज तक, कल तक, परसों तक। ठीक है, और पूरा का पूरा जो मेरी जो ऑडियंस थी या जो हमने बिजनेस किया उसमें तकरीबन
250 लोग जो है वो इस वक्त यूरिका डिजिटल मार्केटिंग से जो है वो फायदा उठा चुके हैं, या इससे भी शायद ज्यादा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना जैसे, तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरी वेबसाइट आएगी, क्योंकि अभी वो उसकी बर्थ हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट 100% होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट, लेकिन मैं एज अ सोलोप्रेन्योर काम कर रहा था, वन मैन आर्मी। तो मैंने एक्चुअली जो मेरी नॉलेज थी मैं उसके हिसाब से वेबसाइट बनाना चाह रहा था, उसकी SEO मैं उसके हिसाब से करना चाह रहा था, सारी चीजें। हाँ इट इज नॉट, ठीक है। उसको अभी हमने बाकायदा एक्चुअली प्रमोट भी नहीं किया, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे मैं लिखूं ना कि सपोज यूरिका डिजिटल, कोई आके जैसे लोग, अब जैसे वर्ड ऑफ माउथ है, सपोज आपने बोला, उन्होंने बोला, दूसरे लोगों ने कहीं से सुना, फेसबुक, तो जाके सर्च करते हैं कि यार है कहाँ, इस तरह से सर्च तो कर सकते हैं ना भाई। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि सपोज अगर कोई सर्च करता है, जैसे यूं ही सर्च करें। देखो हम गूगल पे क्यों जाते हैं, बिकॉज वी हैव क्वेश्चंस, वी वांट टू डू नो समथिंग, रिसर्च वगैरह, तो हम जाहिर है कि वो लिखेंगे। अब जैसे मैं लिखा ना यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखें मेरा वेब पेज नहीं आया है, दिस इज नॉट माई वेब पेज, व्हाट इट इज, दिस इज नॉट ऑल्सो माई फेसबुक। देखो ये जो है ना, आपने क्या करना है, अगर आपका लोकल बिजनेस है, कुछ लोग इंटरनेशनल भी होते हैं, लोकल बिजनेस में ना एक काम आप करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दैट इज नॉट फेसबुक, लेकिन आपको फायदा होगा वो है कि गूगल बिजनेस पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। फ्री की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। जैसे ही आप उस पर कराएंगे, आपको आपकी लोकेशन वगैरह सारी चीजें उसके ऊपर आ जाएंगी। अब इसमें देखें, मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं। एक तो यह कि मैंने अपना बिजनेस जो है ना वो गूगल पे रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। ये business.google पे जाएंगे ना, और इसमें आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जाएं business.google.com, ठीक है, और यहां पर सिंपल आपने ये अपना इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी जगह पे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना। हाँ, यू कैन मॉडिफाई लेटर ऑन, ठीक है। जब आप करेंगे तो होगा ये कि जब भी लोग गूगल के सर्च इंजन पे आएंगे ना, वो आपके नाम पे सर्च करेंगे तो आपका फौरन से आ जाएगा। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो एक काम तो आपने ये करना है कि आप अपने उसको रजिस्टर कर ले फौरन से, ताकि आपके सर्च इंजन को पता चल जाए कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। और ये गूगल जो है वो बाकायदा आपकी डायरेक्शन को भी वेरीफाई कर देता है आपकी ऑडियंस के लिए। दूसरा काम आप देखें तो ये देखें क्या आ रहा है, ये आ रहा है यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, फेसबुक आ रहा है, मेरी वेबसाइट नहीं आ रही। लेकिन क्या मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है? यस, मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, लेकिन आ नहीं रही, इसलिए कि अभी वो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अब ये, तो इससे पता क्या चल रहा है, हालांकि यूरिका-pakistan.com है, क्योंकि पुरानी वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो एक लोगों को पता है, इसको गूगल को पता है कि भाई पुरानी है। लेकिन आपको अब जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने पेज को भी, बिजनेस पेज को, अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त फायदे उठा सकते हैं जब आपके पास वेबसाइट होगी, ठीक है ना। आप बहुत ट्रैफिक ला सकते हैं। एक मिनट मैं देता हूं जवाब। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको कंसीडर करें ट्रैफिक शॉप, ट्रैफिक शॉप, ठीक है ना। ये ट्रैफिक है, आपको ट्रैफिक खरीदना है। आप जाएंगे फेसबुक को, बोलेंगे ये लो 500 रुपए, इस तरह का ट्रैफिक मुझे दे दो इतने इतने दिनों के लिए। आपको उससे फायदा हुआ, आपने कहा मैं रोज 500 रुपए लगाऊंगा और उस रोज 500 रुपए से मैं ट्रैफिक खरीद लूंगा उससे, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक है और हर तरह का जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा। सही है? एक क्वेश्चन है, हाँ। आज के तौर पर
अगर दूसरा बंदा अपनी कोई भी प्रोडक्ट उठाता है किसी भी मार्केट से और वो फेसबुक पे लगाता है और बेचने शुरू कर सकते हैं। अब एक बंदा जो एक काम को प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाह रहा है तो प्रोडक्ट टेक्सटाइल और वर्किंग कर रहा है हम लोग किस तरह करें क्योंकि उनसे वो भी फेसबुक से कर रहे हैं और हम भी फेसबुक तो व्हाट्सएप हाउ आर देखो वो अगर तो सपोज वो मार्केट से उठा के कर रहे हैं और वो आप ही हैं जिनसे वो लेके खुद अपना बेच रहे हैं, हाँ देखो अगर ऐसा है तो पहली तो चीज ये है कि देखो आप जब सप्लाई किसी को दे रहे हैं तो फेसबुक उसको रोक नहीं सकता। सपोज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, आप जाके डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दें तो मैं आपको रोक सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की हुई है और मेरी अपनी ऑडियंस है और मैं डेफिनेटली वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं जो शायद एक नया बंदा भी नहीं कर सकता, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं ज्यादा एक्चुअली बिजनेस जनरेट कर सकता हूं और अपने आप को सेव कर सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि देखो जब कोई भी बंदा किसी से लेता है ना, उसको देखो उसके अंदर हर नए डिजाइन ये वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो लिमिटेड कर सकता है। जब आप उसकी सप्लाई बंद कर देंगे तो डेफिनेटली वो लिमिटेड चीजें कर सकता है और आप ज्यादा कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे नाइकी का शूज है। अब नाइकी के शूज की कंपनी है तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे सेल नाइकी के शूज ऑनलाइन, दे गेट ऑर्डर्स ऑनलाइन। अब नाइकी बोले कि यार एक्चुअली मैं हूं डेवलपर तो इसका नाइकी के शूज का, ये भी बेच रहा है, इससे भी लोग खरीद रहे हैं। भाई आपने जिसको बेचा तो आपने अपना प्रॉफिट ले लिया ना, अब उसको कमाने में, क्योंकि आपने उसको बेचा ही तब था इसलिए कि भाई वो भी आगे पैसे बनाए या नहीं। यस और नो? मकसद बेचना, जितने ज्यादा वैल्यूज हो उतना अच्छा है। अगर नाइक शूज तो ये कहते हैं जैसे बेचे हम ये बोलते ये साइन के दो ये कि आप आगे नहीं बेचोगे, ये बोल देते हैं आप। नहीं, लेकिन अगर वो सप्लाई उसने दी इस वजह से कि वो आगे बिजनेस करे तो वो कर सकता है। अच्छा, मैं आपको बस बता ही रहा था कि देखें आपका ऐसा बिजनेस पेज बन सकता है कि जब लोग उसको सर्च करें तो आपके सर्च उसमें आए। यस, फेसबुक पे जब आप कर रहे हैं तब करें ना, क्या मतलब आप मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते तो ना दें। देखो आप बिजनेस की देखो मेरी बात सुनो, आप अब दो तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो मैं आप बता रहा हूं ना, ये भी मैं वैसे ही बताता अभी बता देता हूं कि दो तरह के, अगर आप फेसबुक की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। फेसबुक के ऊपर आपके पास दो तरह की चीजें हैं, एक आपका पर्सनल प्रोफाइल और एक आपका बिजनेस पेज। पर्सनल प्रोफाइल ये होता है कि आपके पास लिमिट होती है 5000 फ्रेंड्स की, आप 5000 फ्रेंड्स तक बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। फ्रेंड्स मतलब कि देखो फेसबुक जब आया है तो उसने एक्चुअली ये जो टूल दिया उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग जो है वो अपने सोशल इंटरेक्शन को एक्सेलरेट कर दें, आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर दें। और चूंकि आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर हर चीज वो ऑटोमेट करते हैं, तो उन्होंने इस चीज को भी कहा कि भाई अभी सोशल इंटरेक्शन भी ऑटोमेट होना चाहिए ना। लोग 5000 मतलब आज लगा दें, स्केड्यूल कर दें, रिमाइंडर्स डाल दें, इस तरह की सारी चीजें। तो उन्होंने उसकी जो उसके अंदर जो है ना वो पेड मार्केटिंग का अंसर नहीं रखा फेसबुक ने कि भाई आपकी जो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे आप पेड मार्केटिंग नहीं कर सकते। मतलब बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास अपना पेज है लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर सक रहा हूं उसकी। आप उसके ऊपर प्रोफाइल पेज के ऊपर मार्केट नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल पेज है, ठीक है ना, ये मेरा प्रोफाइल पेज है और इस पे मेरे पास जो है वो तकरीबन 4998 है, ठीक है। और मेरे पास जो है ये फ्रेंड की जो रिक्वेस्ट है ये तकरीबन बहुत सारी है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें से समझ लो कि 2 लोगों को और कर लूंगा तो तीसरे को मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सपोज मैं इसको कर देता हूं कि भाई मैं कंफर्म कर दिया ये, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके। अब ये जो ढेर सारे और हैं, तकरीबन 200 के करीब और हैं जो लाइन में, तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी को करने जाऊंगा
तो कहता है यू हैव रीच द 5000 फ्रेंड्स लिमिट। अब ये जो पेज है ये क्या कहलाता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका हुलिया देख लो, इसको यहां पे आप देख लो, यहां पे कोई टैब्स वगैरह नजर नहीं आ रही और इस तरह की कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आपको जो पेड मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप बिजनेस पेज का वो देखेंगे फेस। तो ये पेज बाज लोग क्या करते हैं, अपना पेज बनाते हैं और उस पेज का नाम कंपनी के नाम पे रख देते हैं। सही है, जैसे किसी ने रखा कि ऑसम क्लोथिंग शोरूम, ठीक है ना, इस तरह से रख दिया। अब वो प्रोफाइल उसकी नेचर समझ ले, जेंडर समझ ले, जेंडर जो है ना वो डेफिनेटली जैसे कि है तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसी तरीके से हो सकता है वो डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे नहीं हो सकता। तो आप अगर चाहेंगे कि भाई जो ये जो पर्टिकुलर चीज है प्रोफाइल पेज, ये बिजनेस पेज की तरह रिएक्ट करे क्योंकि उसका नाम आपने रख दिया है, तो कौवा चले हंस की चाल, ये नहीं हो सकता। वो है प्रोफाइल है तो उसकी नेचर प्रोफाइल वाली ही रहेगी, ये बात समझ लें, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं। और ये वाला काम फेसबुक ने आपको, मुझको, दूसरे लोगों को इसलिए दिया कि आपने सोशल सर्कल, फ्रेंड का सर्कल बनाएं और फ्रेंड के सर्कल के अंदर आप अपनी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाएं और वो आप 5000 लोगों तक कर सकते हैं। तो अब आपने कहा कि भाई अच्छा जो 5000 लोगों से ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं उनके तो लाखों लाखों होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि फ्रेंड की जगह ना फैन कर दो, फैन, तो उसको इन्होंने छोटा करके कहा फैन पेज आप क्रिएट कर दो। तो उन्होंने जैसे आपकी 5000 की रीच पहुंचती है, आप फैन पेज क्रिएट कर सकते हैं। वो फैन पेज जो है ना इज लाइक अ बिजनेस पेज विद स्लाइट मोर ऑप्शंस। सही है, ये 3 तरह की टाइप्स हैं, वैसे तो 2 ही हैं, लेकिन इन फ्रेंड प्रोफाइल पेज और बिजनेस पेज के दरमियान इन्होंने एक फैन पेज बना दिया कि सपोज मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं तो मैं उसका एक फैन पेज क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर जो है वो अपना ये काशिफ मेमन पेज जो है ना, ये एक्चुअली मेरा फैन पेज है। अब इस पर क्या है, फ्रेंड के लिए तो आपको रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, जो आप जिसको फ्रेंड बनाएंगे वही आपकी पोस्ट वगैरह को देख सकेगा, लेकिन जो आपका फैन पेज है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको वो कोई भी देख सकता है और आप जो है अपना पेड मार्केटिंग भी उसके थ्रू कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, जैसे चलता है कि अगर कोई फेसबुक पे है ना तो उसका एक डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि ये बंदा ने ऐसे पोस्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। अच्छा ये बात समझ लें कि ये जो है ना, ये मेरा, ये देख लें, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देख लें, ये आपको टैब्स नजर आ रही हैं, ये आपको चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना, ये मेरी पोस्ट नजर आ रही हैं, इस तरीके की ये जो सारी चीजें हैं ये आपको प्रोफाइल पेज पे नजर नहीं आएंगी। देखें यहां पे नजर नहीं आ रही, सही है। यहां पे क्या होंगे, लाइक्स होंगे, वहां पे क्या होंगे, फ्रेंड्स होंगे। समझ में आई बात, फर्क समझ में आ गया? अब दूसरा फर्क समझें कि ये मेरे पास बिजनेस पेज है, ये भी मेरे पास काशिफ मेमन पेज, ये भी बिजनेस पेज है, लेकिन इसको मैं कह रहा हूं ये फैन पेज है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है, पर्सनल ब्रांडिंग है। मैं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को जो है वो मजीद रीच करना चाहता हूं, ठीक है। और ये एक्चुअल कंपनी का नाम है, यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, ठीक है। दूसरी भी बहुत सारी आपके जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे हमारे पास यूरिका इंग्लिश भी है, यूरिका आईटी है, यूरिका मल्टीमीडिया है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, पिंगूज इंग्लिश स्कूल है, तो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पेज बना हुआ है, एक बिजनेस पेज बना हुआ है, ठीक है। और उस बिजनेस पेज के ऊपर आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पेड मार्केटिंग के लिए आपको बिजनेस पेज की जरूरत है और पेड मार्केटिंग अच्छा है करें। अगर आप सिर्फ एक, कुछ लोगों का है कि हम स्मार्ट हैं कि हम जो है ना फ्री ट्रैफिक लेके आए, बिल्कुल लाएं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। अगर आपके पास बहुत वक्त है, साल हैं, आप आस्ते आस्ते टुक टुक करके आप करें तो ठीक है,
लेकिन अगर आप चाहते नहीं भाई मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के बाद अब ठीक है मैं ऑर्गेनिक अप्रोच भी यूज करता हूं, लेकिन मुझे पेड भी तो लेके आऊं ताकि मैं जल्द से जल्द लोगों को एंगेज करूं। क्लियर? ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब आप में से जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि भाई आप हमें कुछ प्रोमोशंस दिखाएं, तो मैं अब उनको प्रोमोशंस दिखा रहा हूं कि जो प्रोमोशंस रन हुई हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं और मुझे उसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, देखें ये नजर आ रहा है ना सबको? हम दो तरीके से प्रोमोशंस को देख सकते हैं। एक तरीकेकार तो यह है कि हमारा जो बिजनेस पेज है यहां पे देखें मैनेज प्रोमोशंस है, आप यहां से देख सकते हैं और यहां से अपने प्रोमोशंस क्रिएट भी कर सकते हैं। और एक इन्होंने टूल दिया है फेसबुक ने विच इज कॉल्ड एड्स मैनेजर, आप वहां से फिर ज्यादा डिटेल के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पहले यहां से दिखाऊंगा ताकि वो लोग जो बहुत ज्यादा आसानी से जल्दी करना चाहते हैं वो यहां से कर लें, और फिर मैं आपको पूरा राउंड करवाऊंगा कि आप एड्स मैनेजर के थ्रू किस तरह से करेंगे। अभी थोड़ी देर में ब्रेक होगा चाय का 15 मिनट, ताकि आप थोड़ा सा और फ्रेश हो जाएं और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं पहले आपको वो दिखा रहा हूं अपनी प्रोमोशंस। देखें ये जो है ये कल चलाइए या 27 फरवरी को चलाइए, ठीक है। और ये हमारी जो लीड है ये ऑटोमेटेड लीड जनरेट हो रही है। ऑटोमेटेड लीड किस तरीके से कि देखो पहला काम क्या है, अब आप सुन लें मेरी बात को। पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं। दूसरा काम यह है कि मैं एंगेज करूं। अब भाई मैं एंगेज करने के लिए मुझे मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए जो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। मैं उनके साथ अपना ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूं, मुझे कॉन्टैक्ट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू एंगेज करूंगा, फिर मैं उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करूंगा, फिर मैं उनको टेलीफोन ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। समझ में आ गया? अब जैसे आपके पास ओवेस इनके पास प्रोडक्ट होते हैं गारमेंट्स के, ठीक है, और ये टी शर्ट्स और इस तरह के इनको चाहिए। तो इनको अब सबसे पहली चीज इसके अंदर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है, ठीक है ना, आपकी मार्केट क्या है। क्योंकि बिफोर क्रिएटिंग मार्केट यू कैन नॉट मार्केट, ठीक है ना, आप सेल नहीं कर सकते उसको। तो मार्केट करने के लिए मार्केटिंग के लिए मार्केट भी तो चाहिए, क्योंकि नॉट ऑल कस्टमर्स आर योर कस्टमर्स, ऑल ऑडियंस इज नॉट योर कस्टमर। तो आपको मार्केट चाहिए। तो अब आपको इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स अभी मैं बताऊंगा कि जिसकी बेसिस पे आप अपनी ऑडियंस, और मैं आपको ये शीट दी है, ये वर्कशीट भी कराऊंगा, इसमें आपको कॉपी राइटिंग करना आ जाएगी। ये बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से आपको कॉपी राइटिंग आ जाएगी। तो यू विल बी इंक्लाइंड टू अट्रैक्ट योर पोटेंशियल ऑडियंस जो वाकई आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है। और ये ज्यादातर सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको टेंजिबल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। टेंजिबल मतलब देखो, टेंजिबल डेफिनेटली फूड तो है, लेकिन बहरहाल वो फॉल करता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इसी तरह से जैसे दूसरे लोग हैं जिनकी ई कॉमर्स शॉप है, ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप है, या वो उनके पास क्लोथ हैं और वो उनको सेल करना चाहते हैं, मार्केट अपनी ऑनलाइन शॉप बना के उसको प्रोमोट करके, और या जैसे कि daraz.pk कर रहा है, जैसे कि amazon.com कर रहा है, इस तरह की जो, तो वो लोग किस तरीके से मार्केट करते हैं, उनकी क्या होगा, उनको क्या चाहिए, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके अंदर, ताकि दोनों बातें आपको पता चल जाएं। ठीक है, अब ये देखें, यहां से मैं अगर व्यू कर रहा हूं ना रिजल्ट इसका, तो इसमें देखें कि ये क्या है, ये 14, ये मुझे ये बता रहा है कि भाई देखो आपने ना 841 रुपए खर्च किए हैं 4 दिनों में, ठीक है, और ये 200 रुपए पर डे के एवरेज आ रहा है ना, उसमें आपकी 14 लीड्स हैं। ये मेरे हिसाब से कम है बहुत ज्यादा, ठीक है, और हम इसको मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मजीद इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं,
और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ कैंपेन ऐसी दिखाऊंगा जो हमने 7 रुपए पर लीड से स्टार्ट की, वो अप टू 19 रुपए पर लीड पे गई, और कुछ कैंपेन्स चली वो 30 रुपीज के ऊपर गई, कुछ लोग 50 रुपीज पे। तो ये जो डिफरेंट कैंपेन्स हमने चलाए उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए, तो हम इसके अंदर मजीद टाइम लगाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे 4000 रुपए लग रहे और बोले मुझे ये 50 रुपए की लीड पड़ रही है, लेकिन वो लीड आया मेरे पास जब कन्वर्ट होती है तो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मुझे एक्चुअली ये देखना होता है। तो मैं उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस है वो बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अब ये देख लें, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, मोहम्मद उमैर है, मोहसिन तनवीर है, सादिक रशीद है, और ये 11 घंटे पहले इसने मुझे दिया है अपना कॉन्टैक्ट कि भाई तुम मुझे कॉन्टैक्ट करो। अब इसने मुझे क्या बोला है कॉन्टैक्ट करो, वो यूं बोला है कि अगर मैं प्रीव्यू आपको दिखाऊं इस एड का, तो इस एड के अंदर मेरी ये कॉपीराइटिंग कहलाती है, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखो कॉपीराइटिंग एक पूरा एक स्किल है, और यहां पर कॉपीराइटिंग मैंने कराते हुए किसी को भी नहीं देखा, ठीक है। और मुझे कैसे आती है, बिकॉज मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने सीखा, मैंने सर्टिफिकेशन ली, आई एम सर्टिफाइड कॉपीराइटर, ठीक है। मैं आज आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आपका वो ज्यादातर उसमें चल जाएगा, लेकिन कंप्लीट अगर कॉपी राइटिंग डेफिनेटली आपको सीखनी होगी तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर माय 3 months डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मेरा ऑफर है, क्लेम 20 मिनट्स फ्री सेशन। मैं अपना एड दिखा रहा हूं, जिन जिन लोगों को दिख रहा है, और ये मेरी जो कॉपी राइटिंग हुई है इसको वो पढ़ता है। इसके अंदर मैंने कॉपी राइटिंग कहते हैं यू एक्चुअली परसुएड अदर पर्सन थ्रू योर कम्युनिकेशन। तो आप एक्चुअली इसके अंदर परसुएड करते हैं और उसको एक एक्शन पे लेकर आते हैं। अब इसने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये भी एक कन्वर्जन है कि मुझे इसने जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मेरी नीश है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। मेरी नीश कौन है, मेरी मार्केट कौन है, मेरा कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर कौन है, किसको चाहिए मेरा प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जिनके पास बहुत ज्यादा मार्केटिंग का बजट नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, लाखों रुपए वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्च करे, वो मेरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि अब ज्यादा ऑप्शंस हो गए और कन्विंसिंग चाहिए लोगों को। लोगों को इतना ये नहीं है कि तुम सिर्फ पोल साइन लगा दोगे और मैं खरीद लूंगा, अनलेस कि आप बहुत बड़े ब्रांड हो गए और बहुत ट्रस्ट आपने और अथॉरिटी बिल्ड कर ली। बट इफ यू आर न्यू बिजनेस और एंटरप्रेन्योर और रनिंग लोकल बिजनेस, तो अब उसके लिए आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत फायदा देगा। आ जाए यहां पर, इसके अंदर देखें, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, वो भी मेरे क्लाइंट हैं। मार्केटर्स जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन देयर जॉब because they are unable to produce result. They ask one thing, and sorry if someone is here, but this is a true fact, because I have been interacting with so many business owners and they have marketers and those marketers are not producing good results, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। और वो क्या करते हैं, वो मार्केटर लाख सवा लाख रुपए का जो भी सैलरी ले रहा होता है और वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है, बिकॉज वो कंपनी से एक चीज पूछता है, सर आपके पास बजट कितना है। अब कंपनी जैसे मेरी जैसी कंपनी है या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो ये तो नहीं बताएगा मेरे पास 10 लाख रुपए का वो है, बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन आवर कैश फ्लोज, ठीक है। हमारा कैश फ्लो आता है तो हमारा बिजनेस चलता है, कैश फ्लो नहीं आता तो बिजनेस नहीं चलता। बहुत बैलेंसेस नहीं होते, मतलब कुछ होते हैं लेकिन बहुत नहीं होते। तो उस है कि नहीं, मतलब यूं ये बात सच है कि नहीं है, ऐसा है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि वो लोगों के लिए भी अच्छा है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू ना वो रिजल्ट ला नहीं पाते, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बुरा होता है। और मैं अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताऊंगा कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिनके लिए मैंने मार्केट किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी किया यहां से बैठकर, मतलब अभी मैंने अपनी सर्विसेज जैसे नहीं दे रहा हूं,
लेकिन जैसे कोई फ्रेंड है या है, उसने कहा यार हमारा भी कर दो, कुछ कर दो, तो फिर उनका कर दिया। बिकॉज हमारे पास अभी इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम हर किसी का काम करना शुरू कर देना। वी डोंट हैव पीपल एंड देयरफॉर आई एम ट्रेनिंग अदर पीपल सो दे कैन क्रिएट इम्पैक्ट, और हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उससे बेहतर होगी। क्योंकि जब जाहिर है कि जो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे ना, कम पैसों के अंदर ठीक हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा मतलब काम हो जाएगा ये। तो इसमें मेरे 4 और एंटरप्रेन्योर, जैसे हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कहा मैं नया बिजनेस शुरू कर रही हूं और उसके लिए मुझे जो है ना मार्केटिंग सीखनी, तो ये आपके लिए भी है। तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी आपने मार्केटिंग इसके अंदर कर दी। अल्टीमेटली हमने उसको परसुएड किया है कि वो क्या करे, साइन अप बिलो एब्सोल्युटली फ्री टू क्लेम योर 20 मिनट्स फ्री सेशन with Miss Rama or call this number to book appointment to achieve your next level income, career and business growth from March, but in year 2019, not to 2020. ठीक है? And you can change your challenges into your confidence with your competency. So sign up free or call Miss Rama at this to tap potential of lakhs or keep beating drum of lakh. अब आप जो है ना वो डेफिनेटली देखो, इट इज अ क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड आई कैन नॉट मेक यू क्रिएटिव, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव। लाइक इफ आई विल टेल यू टू एक्चुअली ड्रॉ हैन ऑन योर पेपर, एक मुर्गी आप ड्रॉ करें तो हर बंदे की मुर्गी डिफरेंट होगी बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट है। लेकिन आई कैन गिव यू अ फ्रेमवर्क एंड देन यू कैन, आई विल गिव यू फॉर्मूलाज, देन यू कैन एक्चुअली use those formulas and framework for your own product and services, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको एक और चीज जो लास्ट बतानी है वो ये है कि ये इस तरह से आपका भी लीड जनरेट करने के लिए आपके पास भी इसी तरीके से साइन अप फॉर्म होगा। जैसे ही हमारा ऑडियंस, कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर इसको क्लिक करेगा, उसके पास फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म खुलेगा तो वो फेसबुक के पास तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी इजाजत से ले लेगा और आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो हमारा जो यहाँ पे सेल्स का जो स्टाफ है और मार्केटिंग का जो स्टाफ है वो क्या करेगा, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको भी बता दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा कि आप जो अपनी कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं आप नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप मीटिंग सेल हो, पहला लीड जनरेट हो, दूसरा काम होगा कि मीटिंग सेल हो। मीटिंग सेल होगी तो हम अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ये चीज भी डिजिटलाइज हो सकती है कि मैं वीडियो सेल्स लेटर बना दूं। लेकिन अभी लोग जो है ना, पाकिस्तान के लोग, दे एक्चुअली डोंट टेक रिस्क टू बाय ऑनलाइन दैट मच हैं, लेकिन स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री को सर्विस को खरीद रहे हैं, वो भी सर्विसेज जो कि नजर नहीं आ रही हैं, ये अभी इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी इस प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करते, हम उसको कहते हैं भाई मीटिंग करें। लेकिन मीटिंग सेल करने के लिए जो कम्युनिकेशन होती है वो जरूर होती है। तो मैं आपको व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बताऊंगा, भाई अगर मेरे पास 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, तो फेसबुक ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, 5 से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो सकते मैसेजेस, तो आप कैसे करेंगे, है क्या नहीं। अब इसमें आपका टाइम भी जाया होगा, सर्च करेंगे तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, और मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा तो है कि वैल्यू के नहीं। तो कोर्स की वैल्यू ये आपको इस तरह से भी देखें कि एक्चुअली इट विल सेव योर टाइम व्हेन यू विल रन दिस प्रोसेस, दिस वन थिंग। ये जो एक चीज है, मैं आपको अपनी कैंपेन दिखाऊंगा, लाखों रुपए की कैंपेन रन कर चुका हूं, 8-9 लाख रुपए की तो कर चुका हूं, बल्कि शायद से भी ज्यादा, मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद एक्चुअली हमें भी जाहिर है कि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रोसेसेस, टेस्ट, वो मैं आपको 5 मिनट में दे दूंगा ताकि आप लोग जाकर जो है वो फौरन से उसको कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये 14 लीड्स का मतलब क्या है, और मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड कर रहा हूं। देखें, ये 14 लीड्स का मतलब ये है कि 4000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा,
उसमें से 14 लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया, साइन अप कर लिया, ठीक है। विच इज फॉर मी इट्स नॉट अ गुड रिजल्ट। वाई? बिकॉज आई हैव अनदर रेफरेंस इन माई माइंड, यार इससे बेहतर पहले किया था तो इसलिए बेहतर नहीं लग रहा, अगर पहली दफा किया होता तो बेहतर लगता। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ कि सपोज ये मेरी लीड्स हैं, ये 4095 लोगों के पास 14 रिजल्ट दे रहा है, और ये मुझे 130 लीड्स जनरेट हो गई हैं और 14,000 रुपये के 14,000 लोगों तक मुझे 130 लीड दे रहा है। तो ये ज़्यादा बेहतर हुआ कि नहीं? ये ज़्यादा बेहतर हुआ। हम इसको देख लेते हैं। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 38 रुपीज़ की कॉस्ट पर लीड, ठीक है। और ये सारे नंबर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 60 रुपीज़ की। वेरी गुड, यू आर आई मीन एक्टिव, आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात। 60 रुपये, ठीक है। और इसी तरीके से एक और कैंपेन खाली दिखा दूं जो कि बहुत अच्छी लर्निंग होगी आप लोगों के लिए, और वो है टिसॉल कनाडा। और आपके लिए शायद ज़्यादा रेलिवेंट हो बिकॉज आप भी अपना सर्विस इंडस्ट्री में हैं और स्टूडेंट्स को जैसे डील करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी हो जाएगी। और हर उस पर्सन के बिजनेस के लिए जो कि लीड जनरेट करना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, जो कि वो खुद बोले कि हाँ मैं आपके साथ एक्चुअली इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है। टिसॉल कनाडा जो है ये हमारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है टीचर्स के लिए, कि जो टीचर्स जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट ले लें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग का, तो वो बाहर जाकर अच्छे से पैसे बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने ना 785 लीड्स जनरेट की, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और इसमें सबसे कम पैसे हमारे लगे मार्केटिंग करने में, लीड जनरेट में। इस क्या बताता है? ये बताता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत नीड है इसकी, इसलिए एक्चुअली रिस्पांस हमें अच्छा मिला, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो कॉस्ट आई थी ये हमें 19 रुपीज़ की लीड पड़ी। लेकिन जब ये कैंपेन जब आपकी चलती है ना, जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाएंगे ना तो ज़रा अच्छा चलेगी, ये भी मैं बता दूं। बिकॉज जब आप न्यू यूज़र हैं तो फेसबुक डेफिनेटली विल इनकरेज यू टू गेट बेटर रिजल्ट्स। और अब ये नया पेज था तो हमने चलाई तो 7 रुपये की हमारी लीड जनरेट होना शुरू हुई, 100 पे, 200 पे, 300 तक, 8 पे गई, 9 पे गई। और फिर हमने पहले 8,000 रुपये की कैंपेन चलाई थी, उसके बाद हमने 8,000 रुपये की और चलाई, तो हमने टोटल 16,000 रुपये इस पर खर्च किए। और इसमें तकरीबन ये 39.7% विमेन है और 60% जो है वो मेन है, ठीक है। और इसके अंदर आप पूरी टिसॉल की मतलब कितने साल के लोग हैं, कौन सा, इससे आपको पता क्या चलता है कि आपका डेमोग्राफिक्स पता चलता है कि यार आपका जो कस्टमर आपके पास आ रहा है या जो इंटरेस्टेड है वो किस एज ग्रुप का है। तो आइंदा की जो कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि ये मैंने 16,000 रुपये टोटल लगाए, ठीक है, और 785 हैं। अब इसके अंदर एक चीज और जानने की है, वो ये है कि देखें जब आप लीड जनरेट करते हैं ना, इसमें क्या है कि आप अगर लीड जनरेट कर रहे हैं, अगर सपोज आप रिटेल बिल्कुल बिजनेस से नहीं है कि इस तरीके का कि भाई लोग आए और फौरन से कंज्यूम करें आपके, जैसे कि फूड का बिजनेस है, फूड के बिजनेस के अंदर स्टडी डिफरेंट होगी, इस तरह की लीड नहीं जनरेट होगी। इनके उसके अंदर क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इनके कूपन्स को एक्चुअली अवेल करें, उसको डाउनलोड करें, ठीक है ना। अगर ये ड्राइव करना चाहते हैं ट्रैफिक या उसको एंगेज करना चाहते हैं तो ये अपने कोई भी 5 से 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स
जो कि लोगों को अपील कर सकते हैं। उसके अंदर फिर ये देखेंगे कि यार कौन सी एज ग्रुप जो है और उसके इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर वो लोग जो है ये पर्टिकुलर डिश जो है उसको पसंद करते हैं। उसमें स्वीट डिश भी हो सकती है, उसमें बर्गर्स भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में या B2B बिजनेस है, जैसे आप चाहते हैं कि यार मुझे B2B बिजनेस करना है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। B2B बिजनेस तो पता है ना सबको। B2B बिजनेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे इम्तियाज स्टोर है, इम्तियाज स्टोर किसी न किसी से कुछ ना कुछ खरीदता होगा ना, तभी वो आगे बेचता है, ठीक है। तो इम्तियाज स्टोर जिससे खरीदता है, सपोज अगर वो काशिफ मेमन से खरीदता है तो काशिफ मेमन का जो बिजनेस है इम्तियाज स्टोर से वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिकॉज व्हेन आई विल सेल देन दैट पर्सन कैन सेल टू अदर पीपल, ठीक है। और एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें फॉर एग्जांपल जो इम्तियाज स्टोर है वो एंड कंज्यूमर को जो एक्चुअली चावल और उसको कंज्यूम करेगा उसको वो सेल कर रहा है, तो वो B2C कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो हम दोनों तरह के बिजनेसेस को कैटर कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर अगर आप एलीट क्लास के बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो लिंक्डइन के ऊपर B2B बिजनेस होता है, लिंक्डइन पे B2B बिजनेस होता है और आप डायरेक्टली लोगों के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, उसके प्रोफाइल होते हैं, वो एक अलग स्किल है। लेकिन फेसबुक पे आपका बिजनेस टू कंज्यूमर ज्यादा चलेगा और B2B भी चल सकता है। लेकिन आप अगर बहुत बड़े उसके ऊपर करना चाह रहे हैं कि आपको करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले B2B के अंदर, लाखों रुपए के और इतने बड़े बड़े, तो फिर उसके लिए आपको लिंक्डइन को यूज करना पड़ेगा, सही है। अब इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या होगी वो देख लें जल्दी से। कि देखिए पहला स्टेप ये है कि आपने जब लीड जनरेट कर ली तो लीड सपोज आपकी 5,000 रुपए के अंदर 100, ठीक है ना, ये आपकी कॉस्ट आ रही है। बूस्टिंग कॉस्ट की बात नहीं, मैं बिल्कुल बूस्टिंग की कॉस्ट कह रहा हूं कि आपने पेड मार्केटिंग की, पेड मार्केटिंग पे आपने ये पैसे लगा दिए 5,000, ठीक है। और 5,000 से आपको अब आपने क्या सीखना है कि मैं एक सेटअप कैसे करूंगा ना, हाउ आई विल ऑटोमेट माई कैंपेन, आपने ये सीखना है, जो कि चाय के बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्लियर तो हो कि भाई क्या हर प्रोडक्ट के लिए मैं करूंगा क्या लीड, नहीं, हर प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए आप लीड जनरेट नहीं करेंगे भाई। सपोज अगर तो आप करना चाहते हैं, सपोज मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि इनके जहन, अगर ये मैंने नहीं किया ये, लेकिन हो सकता है इनके पास कि भाई मैं 500 लीड जनरेट करूं, 1000 लीड जनरेट करूं, उनके कॉन्टैक्ट मेरे पास आ जाएं और मैं उन ऑडियंस के दरमियान अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करूं, बिकॉज दे आर मोर आई मीन इंक्लाइंड टू कम टू एंड विजिट माय रेस्टोरेंट्स। तो ये अगर इनकी अप्रोच है तो उस सेंस में तो ठीक है कि भाई ये उनको एजुकेट करना चाहते हैं, इस तरह से बिल्ड करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि कोई मुज़ायका भी नहीं है, 5,000 10,000 रुपए के ऊपर रन कर सकते हैं इफ इट वर्क्स, और ये इनका नया क्लाइंट बनता जाता है तो ये देख लें। लेकिन सपोज अगर इनकी एक कॉस्ट पड़ती है 30 रुपए की, भाई सपोज इन्होंने लीड कैसे जनरेट की, मैं आपको बता रहा हूँ वकार, ये लीड कैसे किस सेंस में जनरेट कर सकते हैं इनके केस में, कि भाई सपोज इन्होंने कहा कि यार देखो, एक होता है लीड मैग्नेट, एक चीज होती है लीड मैग्नेट, लीड तब जनरेट होती है। अब लीड मैग्नेट क्या है, हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई वी विल एक्चुअली प्रोवाइड यू 20 मिनट्स फ्री कंसल्टेंसी इन योर करियर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, यू गिव अस योर नंबर। इनके केस में ये फॉर एग्जाम्पल कोई 50 रुपीज की कुकी, कोई मीठी, कोई भी ऐसी चीज या कोई डिस्काउंट कूपन, if you want to avail 20% discount coupon, 50%, 20%, 30% in a particular thing, you can actually sign up with us। जैसे उसने साइन अप किया, इसने अपना कूपन उनको भेज दिया, उसके पूरे वो भी आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, ये कूपन खुद सॉफ्टवेयर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, ये कूपन क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर हैं, ये उनको कर दे। इससे क्या कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक को मजीद ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसके अंदर एक ऐसी वैल्यू है कि भाई फर्स्ट टाइम का जो कस्टमर है और फर्स्ट टाइम का कस्टमर आपके पास विजिट कर जाए, तो आप उसको जो एक्सपीरियंस कराएंगे उसकी बेसिस पे वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाएगा, या फिर आप उसको मजीद डेफिनेटली कोई और मोटिवेशन दे सकते हैं कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपको फिर एक ये पर्टिकुलर, हर दफा आप आएंगे तो आपको ये चीज मिल सकती है इस तरह से। तो ये एक लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बन सकता है। क्वेश्चन है?
मैं अब आ रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो आपका ऐड होगा ना, उस ऐड पे खर्च। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट लेते हैं तो हमें ये पता होता है अपने साइट पे हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब एडवर्टाइजमेंट किसी की जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं तो बड़े एफडी बजट लेके आ जाते हैं, तो वो हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा, वो बात तो कर रहे होते हैं कि डायनेमिक्स हम लगाएंगे, डेमोग्राफिक्स आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपये लगें और ये इससे हमें लीड जनरेट शुरू हो, तो उसका क्या मैकेनिज्म? अभी मैं आपको कराऊंगा ना, स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बस मैं इससे पहले ना ये उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चीज जरूरी है जो कि सबको बताना है, वो ये है कि यार देखो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मुझे 5,000 भी लगाने हैं या नहीं लगाने। मैं 10,000 क्यों ना लगाऊं, मैं 1,000 क्यों ना लगाऊं, और मैं लगाऊं ही नहीं। ठीक है, वो ये कहें मैं लगाऊं ही नहीं, आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्विकली एक चीज को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन क्या दे रहा हूं कि सपोज आपने अपना एड रन किया और हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड स्प्लिट टेस्टिंग। यू रन योर एड अमंग डिफरेंट ऑडियंसेस। आप डिफरेंट ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं 3, उसमें एक एड को चला के देख सकते हैं कि यार कौन सी ऑडियंस ज्यादा आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा, आप एक ऑडियंस ले लें और डिफरेंट क्रिएटिव आर्टवर्क ले लें, आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा आर्टवर्क सही है कि लोग, या मेरा मैसेज जो है वो सही है कि लोग उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपके पास अभी कैंपेन आपने रन कर दी, 5,000 रुपए लगा दिए, आपकी 1 और 100 आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ गए कि यार मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, तो क्या सारे के सारे खरीद लेंगे आपसे? नहीं खरीदेंगे। अच्छा, अब आपकी कॉस्ट इस पे कितनी आई? 50 रुपए पर लीड, यस और नो? 50 रुपए आई। अब इसके ऊपर एक रिसर्च है कि भाई जब आप लीड जनरेट करेंगे इंटरनेशनली, और वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, लेकिन एक रिसर्च है जी, नेशनल लीड्स जनरेट करने का भी सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट होगी। ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो प्राइस आपको डिफरेंट लगेगा, वो मैं बता दूंगा कि आप कैसे मालूम करेंगे कि किस कंट्री में कैसे लगेगा, सही मैं बता दूंगा। अभी इसको देखें, ये हमने किया कि लीड जनरेट, हमारी कॉस्ट आई 100 लीड पर 50 रुपए पर लीड। ठीक है ना, लीड का मतलब इंक्वायरी। बाज लोग तो पिछली वर्कशॉप में कहा था लीड क्या होती है, लीड का मतलब आपके बिजनेस के लिए इंक्वायरी। ठीक है, सेकेंड स्टेप आप चेक करेंगे कि भाई रिसर्च ये कहती है कि आपके पास जो रिस्पॉन्ड करेंगे ना वो 15 से 16% करेंगे, 15 से 16% आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा इसमें से। अगर आप जैसे मीटिंग के लिए, अब जैसे अगर गुलरुख जो है वो इंटरेक्ट करेगी ना 100 लीड के बाद, तो उसको 15 से 16 लोग जवाब देंगे, ये बात समझ लें। तो इसकी वजह से आप क्या नहीं करना, आप अपने आप पे गुस्सा मत करना या नेगेटिव मत फील करना कि यार मुझे क्यों एक्चुअली ये हो रहा है, ये तो कोई ये नहीं है, क्योंकि ये तो रिसर्च है। और ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों ने आपको लीड दिया लेकिन वो कह रहे हैं हमने देखा था, हम एक्सपीरियंस करेंगे इसको। हो सकता है अभी आपकी कम्युनिकेशन को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, वो देखना चाह रहे हो, तो आपने देखना है कि भाई 15 लोग हैं, तो आपके पास अगर 15 लोग सपोज इंटरेक्ट करते हैं, या 10 लोग, मैं कहता हूं 10 लोग आपके पास मीटिंग करते हैं, मैं कहता हूं 10 लीड्स जो है ना कन्वर्टेड इनटू मीटिंग्स। ठीक है, तो 10 के पर मेरी कॉस्ट आ जाएगी 500 रुपए पर मीटिंग, यस और नो? ठीक है भाई, 500 रुपए पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी एक मीटिंग की। और फिर रिसर्च है कि जितने लोग मीटिंग करेंगे इसमें से 3 से 4 लोग जो है ना वो कन्वर्ट होंगे, जो आपसे बाय करेंगे उस प्रोसेस के अंदर। जो आपकी कैंपेन का जो ऐसे प्रोसेस चल रहा है और आप उनके साथ इंगेज हो रहे हैं, तो आपसे जो कन्वर्जन होगी वो कितनी होगी? 3 to 4%। अब आपके पास अगर 10% हो जाती है या 10% हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारे डिफरेंट उसमें डिफरेंट
आए रिजल्ट। जैसे आपके पास 3 लोग या 4 लोग अगर इसमें से ले लेते हैं, या 5, मैं वो एवरेज ले लेता हूँ, 5 लोग अगर मेरे से ले लेते हैं तो आसानी के लिए कैलकुलेशन की, तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी 1000 रुपीज आएगी पर कन्वर्जन। ठीक है, पर कन्वर्जन अगर मेरे 5 लोग मुझसे बाय करते हैं, 5 परचेजेस अगर होती हैं तो मेरी 1000 आ जाएगी कॉस्ट, यस और नो? ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि भाई देखें ये जो 100 लीड्स है ना, ये अभी नहीं लिया, ये इनको मजीद इंगेजमेंट में डालना होगा आपको, इंगेजमेंट के लिए, ताकि ये आपके पास मीटिंग बने। तो आपकी जो कैंपेन चलेंगी इसके लिए, इस पर्टिकुलर लोगों के लिए वो मीटिंग, इनको आप नेक्स्ट फेज में लेके आएंगे। ठीक है, हो सकता है वो नेक्स्ट मीट, और ऐसा ही होता है कि हमारे पास आज लीड जनरेट हुई तो इस महीने उसने मीटिंग नहीं की, लेकिन अगले महीने की, और उससे अगले महीने में फिर उसने जाके एडमिशन भी लिया, या उससे अगले महीने में जाके उसने तीसरे उसने वर्कशॉप ली, और वर्कशॉप के बाद फिर उसने हमारे पास से लिया। यू गेट माय पॉइंट? क्लियर? तो आपको अगर इमीडिएट आरओआई चाहिए, इमीडिएट आप बताएं कि भाई मेरे पास अभी आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, तो आप ये देखेंगे भाई अब आपका जो प्रोडक्ट आपने इसको बेचा है उसके ऊपर आपका मार्जिन क्या है। अगर आपका मार्जिन उसके अंदर, जैसे मेरे अगर मेरी सर्विसेज हैं, हमारा सबसे लीस्ट जो प्रोडक्ट है वो है इंग्लिश का, 4000 रुपए का, 3500, 4000। तो मैं देखूंगा कि भाई देखो अगर मेरी और मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि $1200 का है, ठीक है, तो अगर $1200 पे मेरी ये लग रही है, जो कि कॉस्ट अगर लगी, जैसे मैंने 16 इनरोलमेंट्स की टिसॉल के अंदर 16,000 रुपए लगाकर, तो मेरे पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो $16,000 प्लस हुआ। ठीक है, मैं फिर इसकी कैंपेन अब चलाऊंगा और इससे ज्यादा की चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चलाई, उसके अंदर अगर सपोज मेरे पास 10,000 रुपए बच रहे हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा भाई हर 1000 रुपए पे 10,000 रुपए बच सकते हैं मुझे। अब अगर आपके पास 4,000 रुपए का है, 3,000 रुपए का है, लेकिन आप तो उसके हिसाब से आपको फिजिबिलिटी देखनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या मिल रहा है। जहां पर फूड का है ना, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट आपके पास होगा, और उसमें मैं आपको कैंपेन के तरीके बताता हूं। आप लीड जनरेट 1-2 हज़ार रुपए की टेस्ट करके कर लें, लेकिन जो दूसरी कैंपेन है वो लेस एक्सपेंसिव है, और वो आपको कम पैसों के अंदर ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करेंगी आपके लोकल स्टोर के ऊपर, लोकल रेस्टोरेंट के ऊपर। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये सर अदर बिजनेसेस के लिए लाइक फैब्रिक्स, अगर हाँ आप ऐसे बिजनेसेस ना, जैसे फॉर एग्जांपल ओएस का बिजनेस है, या वो जो एजुकेशन का बिजनेस है, या इन्होंने जैसे कहा कि भाई उन्होंने कहा मॉन्टेसरी मुझे मजीद पेरेंट्स चाहिए, तो भाई मजीद पेरेंट्स आपके पास लीड जनरेट होगी, आप उनको एंगेज करेंगे। आजकल हर स्कूल में 40-50 हज़ार रुपए का एडमिशन तो होता है कम से कम। ठीक है, फीस आएगी पर कन्वर्जन आएगी 1000 रुपये। तो मेरे पास तो कॉस्ट आसानी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कहते पे तो कन्वर्जन के ऊपर 1000 रुपए लग रहे हैं सर, मेरा प्रॉफिट ही 500 रुपए, मैं क्यों करूँ? तो आप दूसरी चीज करेंगे, मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा, आप दूसरी चीज करेंगे। आप बहुत कम पैसों में रीच बढ़ा सकते हैं, बहुत कम पैसों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और वो दूसरी चीज कर सकते हैं। ठीक है।